Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. Thank you for joining us today. Welcome to another exciting session of our R2D bootcamp. My name is Muqaddas Malik and I am a biotechnology graduate from VU and serve as a campus ambassador at Biotech Squad. It's my pleasure to be your host for today's sessions. Today marks the first session of week 4 and I honestly can't believe we have already reached this stage of bootcamp. लगता है बस कल ही हमने रिसर्च आइडियाज का डिस्कस करना शुरू किया था एंड अब हम थीसिस सबमिशन के फाइनल स्टेज तक पहुंच गए हैं. Before moving forward, let's have a quick recap. Last week, we focused on understanding and presenting our research finding. We learned about data analysis, interpretation, and writing results. We also explored how to use EndNote from managing reference, citations, bibliography, and different citation styles. फॉर मी ये जो एंड नोट्स का सेशन था ये बहुत जरूरी था एंड जिन लोगों ने लिया उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा. So today we will move on to the final stage of a research project, which is preparing your thesis for submission. The topic for today's session is thesis formatting and compliance, abstract writing, references, and final review. Every great researcher deserves great presentation. रिसर्च करना जितना इम्पोर्टेंट होता है उसको प्रोफेशनली प्रेजेंट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंस होता है. एक हम रिसर्च कर लेते हैं, फाइनल रिव्यू कर लेते हैं, रिसर्च शो कर लेते हैं, बट हम रिप्रेजेंट करते हुए घबरा जाते हैं, हम डिलीवर नहीं कर पाते हैं, तो ये भी जरूरी होता है. So today's sessions will help you refine every detail of your research before submission. To guide us through these topics, we are honored to have Dr. Javeria Qadir with us. She's an assistant professor in the Department of Biological Science at the International Islamic University, Islamabad. Thank you, ma'am, for joining us today. We are looking forward to learning from your experience. Before we begin, a quick reminder for all the participants. Please keep your microphone and camera turned off throughout the session. If you have any question, any type of query, you may raise your hand or you can type them in the chat box. In the end, we will also have a Q&A session where all of your queries will be answered. I encourage everyone to stay engaged throughout the session because small formatting details often make a big difference in the final quality of thesis. So I would like to invite Dr. Javeria Qadir to begin today's sessions. Over to you, ma'am. Thank you so much, Muqaddas, for such a warm and pleasant welcome. Okay, so as Muqaddas has already informed that you guys have been through all the previous sections of this bootcamp regarding thesis write-up, introduction, methodology, how to formulate your findings, and how to refer, provide citations in your thesis. So this week, we will be discussing about the very final stages of your thesis or project, right? One is thesis formatting. By now, you must have learned how you do your introduction, literature synthesis, how do you plan your methodology, how do you represent your results, and the other thing is how do you interpret your results, how you write it in a discussion, how you can conclude your findings and all of that. Now is the time we know that thesis formatting is the most important and crucial step when it comes to thesis writing and submission, right? So this is probably the last minute step that you always do, right, before submitting your thesis and before your defense happens, right? So I always say one thing. So before starting this formal lecture, I like to quote that here. I always say that your thesis is your legacy. You might have got from the institution, from the department, but your thesis or a copy of your thesis always stays with the supervisor or at the department, right? So even if you're gone, people might still be referring back to your thesis and seeing what you have done, how you have done, right? And I know that none of us would ever want our thesis to be full of so many mistakes or be so erroneous that people talk about us.
इसने क्या थीसिस किया है, इतनी गलतियां हैं, देखो मुझे पहले पेज पे इतनी गलतियां नजर आ गई, राइट? ऐसे कमेंट्स हमें बहुत दफा सुनने को मिलते हैं। फिर बात आती है, बिकॉज ऑल द थीसिस दे आर सुपरवाइज्ड बाय सम मेंटर और अ सुपरवाइजर, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स ऑलवेज अ कमेंट के लगता है इनके सुपरवाइजर ने भी सही चेक नहीं किया, ठीक है, क्योंकि इनके प्रिंटेड फॉर्म में इतनी सारी गलतियां हैं, राइट? So neither the supervisors nor the students they ever want to listen to these things के किसी बच्चे का थीसिस इतना गंदा है, उसमें इतनी गलतियां या कुछ इस तरह से, राइट? सो आज का लेक्चर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप में से आई एम श्योर कोई नहीं चाहेगा कि अगर आप लोग चले भी जाएं तो आपके थीसिस में बैठ के लोग इस तरह कीड़े निकाल रहे हैं, राइट? ऐसा ही है। ओके, सो the title of our presentation is Thesis Finalization and Defense Preparation, right? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि थीसिस फॉर्मेटिंग में क्या ऐसी चीज है जो आप लोगों को सबसे मुश्किल लगती है, what would that be? I want your answers to be in the chat. Write in the chat. Formatting as a whole itself, Aruj. Formatting and delivering both the aspects of today's presentation. Okay, what else? There are 21 participants. Students, I want it to be interactive. There is nothing that you guys don't know about thesis finalization, right? So it's more of a discussion and interactive session. So I want all of you to be participating in it. It's not going to be a teacher-student thing. It's going to be an interactive session between you and me. Okay? Yeah. Iske alawa, I got only consistency. So you find consistency difficult. Why so? Consistency क्यों difficult लगती है बेटा? Consistency से मतलब क्या होता है? Anybody? What is meant by consistency? Manal ने लिखा था, and it was a very nice word in regards to thesis finalization. Because जब भी मैं thesis review कर रही होती हूँ, the very thing I write over and over again is be consistent in your thesis. Be consistent in your writer. Be consistent in the font size, right? What does that mean? It means कि जहां से आपने शुरू किया और जहां तक आप उसको end कर रहे हैं, everything must follow a similar pattern. Yes, regularly, doing something regularly. Yes, font, temps, size, every. The basic problem that we often face is कि किसी ने एक हेडिंग अगर 16 फॉन्ट में दी हुई है, उससे आप नेक्स्ट हेडिंग में जाओगे वो 18 फॉन्ट में होगी, उससे नेक्स्ट में आप जाते हो वो 20 फॉन्ट में होगी, राइट? सो दिस इज इनकंसिस्टेंसी एंड यू वांट योर थीसिस टू बी हाईली कंसिस्टेंट. यानी अगर मैं पहली सबसे मेन हेडिंग दे रही हूँ 16 फॉन्ट में, तो पूरे थीसिस में मेरी मेन हेडिंग किसमें होनी चाहिए? फॉन्ट साइज 16 में. अगर मैं टाइम्स न्यू, हमारे जैसे एपीए फॉर्मेटिंग का स्टाइल होता है थीसिस राइटिंग में भी और रेफरेंसिंग में भी, ठीक है? तो एपीए में रिक्वायरमेंट है आप टाइम्स न्यू रोमन यूज करते हो पूरा फॉन्ट. आई हैव सीन सो मेनी थीसिस जहां पे बच्चे कहीं पे एरियल ले आते हैं, कहीं पे कैलिबराई ले आते हैं, कहीं पे टाइम्स न्यू रोमन. व्हाट इज इट? दिस इज इनकंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ थीसिस फॉर्मेटिंग. यानी जहां पे आपका दिल कर रहा है वहां पे कोई फॉन्ट ले आओ, ठीक है? अक्सर औकात ये होता है कि आप लोग की लाइन स्पेसिंग में बहुत ज्यादा वैरायटी होती है. एक पैराग्राफ है, इट्स वेरी क्लोज, राइट, वेरी टाइटली रिटन, एंड देन कम्स द नेक्स्ट पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ में आपको 1.5 2 इस तरह की स्पेस नजर आती है. देन कम्स अनदर पैराग्राफ और वापस क्या होता है, वो इतना ही टाइट वर्ड शो कर रहा होता है. व्हाई? बिकॉज यू हैवंट फॉलोड एनी स्पेसिफिक पैटर्न while writing your thesis.
and that is why your thesis is now inconsistent. ठीक है, आज के लेक्चर में मैंने बहुत सारी ऐसी इमेजेस शामिल की हैं जो कि हम देखेंगे और हम उसमें गलतियां निकालेंगे, राइट? बिकॉज आज का ये जो सेशन है इट्स वेरी प्रैक्टिकल, इट्स नॉट समथिंग थेरेटिकल कि आपको कहा जाए गलती नहीं करनी, फॉर्मेटिंग अच्छे से करनी है, राइट? दिस इज समथिंग ऑल ऑफ द सुपरवाइजर्स वुड टेल यू, राइट? आज का क्या है कि हम सिनेरियो देखें, गलती पकड़े उसमें से, राइट? और अगर हम किसी एरर को या मिस्टेक को कैच कर पाते हैं तो उसके बाद ही हम वो दोबारा दोहराने से परहेज करते हैं, ऐसा ही है ना? आज अगर आप एरर पकड़ सकते हो तो आप खुद के थीसिस में वो एरर नहीं करना चाहोगे, ठीक है? सो why is it not moving further? All right. So coming towards the learning outcomes of today's presentation. आज हम सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हम अपने थीसिस को ठीक से फॉर्मेट करना सीखें, राइट? उसके बाद अच्छा एब्स्ट्रैक्ट लिखना सीखें, ठीक है? उसके बाद मैनेजिंग रेफरेंसेस एक्यूरेटली. आई वोंट गो इनटू द डेप्थ ऑफ क्या क्या रेफरेंस स्टाइल है, एंड नोट, जोटेरो, मेंडले कैसे यूज होता है. नो, आप लोगों को, यू गाइस हैड अ वेरी गुड सेशन अर्लियर ऑन मैनेजिंग रेफरेंसेस, और अभी जैसे मुकद्दस ने भी मेंशन किया है कि आप लोगों ने एंड नोट का यूजेज सीखा एंड ऑल ऑफ दैट. दैट इज समथिंग यू हैव ऑलरेडी डन. हमने आज क्या सीखना है, गलत रेफरेंस को कैसे पकड़ना है, ठीक है? और ताकि हम गलती ना करें, राइट? एंड देन परफॉर्म अ फाइनल क्वालिटी रिव्यू. आप एक बात याद रखना हमेशा कि पहले आप एक रिसर्चर होते हो. व्हेनेवर यू आर कंडक्टिंग लैब एक्सपेरिमेंट्स, आप रोल प्ले कर रहे होते हो एक रिसर्चर का, ठीक है? उसके बाद जब आप थीसिस लिखने वाला काम करते हो तो यू आर अ राइटर, यू आर एन ऑथर ऑफ योर थीसिस, ऐसा ही है. उसके बाद जब फॉर्मेटिंग का टाइम आता है तो यू आर नो मोर एन ऑथर और अ राइटर ऑफ योर थीसिस. नाउ यू आर अ क्रिटिकल रिव्यूअर. आपका थीसिस उसी वक्त अच्छी शक्ल में आएगा जब आप एज अ क्रिटिकल रिव्यूअर उसको खुद जज करोगे, उसको रिव्यू करोगे, ठीक है? So first you are a researcher, then you are a writer, and after that you are a reviewer of your own thesis. और अगर आप अच्छे रिव्यूअर नहीं हो तो आपके थीसिस की क्वालिटी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, right? So it's very important to be a good author of your thesis as well as a good reviewer of your thesis content. Now, okay, so what is your biggest fear in regards to thesis writing and submission? आपने सारा लैब का काम कर लिया, अब वक्त है कि आपने थीसिस सबमिट करवाना है, ठीक है? आप मुझे ये बताओ कि इस सारे प्रोसेस में, थीसिस लिख रहे हो, सबमिट कराओगे, डिफेंस दोगे, इस सब चीज में व्हाट इज द थिंग यू फियर द मोस्ट? आपको लगता है कि यार ये क्या स्टेप आ गया है, ये तो, इससे आपको बहुत डर लगता है. राइट योर वर्ड्स इन चैट. Chat. Guys, yes. Connecting ideas, maybe. Logical flow. Oh, yes. Oh, yes. Thank you for highlighting, Manal. Yes. I'll mention this. This is part of write-up though, but yes. आप लोग क्या करते हो? Connecting ideas, logical flow. Logical flow क्या होता है? For instance, I'm a cancer researcher, so I always give an example of cancer as a disease model, right? अब फर्ज करो मैं कहती हूँ कि पहले मैं काम कर रही हूँ ब्रेस्ट कैंसर पे से, ठीक है? मैं पहले इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कि कैंसर ये है, ठीक है? और उसके बाद फुल स्टॉप लगाती हूँ उस पैराग्राफ को और सडनली कहती हूँ ब्रेस्ट कैंसर इज दिस. डज दैट मेक सेंस? अभी पिछले पैराग्राफ में मैं सिर्फ कैंसर की बात की, अगले में मैं आई और मैंने अचानक से ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करना शुरू कर दी, राइट? ये क्या है? ये लॉजिकल फ्लो नहीं है, बिकॉज मैंने कोई कनेक्शन जोड़ा ही नहीं उन दो पैराग्राफ्स के बीच में, ठीक है? सो इस केस में बहुत जरूरी है कि मैं कहूँ कि कैंसर इतनी इंपॉर्टेंट डिजीज है और इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं जिनमें से ब्रेस्ट कैंसर एक है.
and then I start explaining breast cancer. अब क्या हुआ, मैंने पिछले पैराग्राफ में ही थोड़ा सा ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मेंशन कर दिया, कैंसर से आते आते नैरो डाउन होते होते मैं ब्रेस्ट कैंसर पे आई, राइट? सो दिस इज कॉल्ड लॉजिकल फ्लो. एक बात आप थीसिस राइटर में हमेशा याद रखना कि आप लोगों का पिछला पैराग्राफ अगले पैराग्राफ से लिंक होना चाहिए. नहीं लिंक हो रहा तो आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स के लास्ट 2 लाइंस को कनेक्टिंग लाइंस बना दो, ठीक है? लास्ट 2 लाइंस कुछ ऐसी हों जिनसे मुझे पता लगे कि आप अगले पैराग्राफ में क्या बात करोगे, राइट? सो इट शुड नॉट बी दैट डिस्टिंक्ट, दैट इंडिपेंडेंट कि भाई हर पैराग्राफ लग रहा है कि अलग ही कहानी सुना रहा है. नो, everything must be connected to the previous thing, right? This is called logical flow in your thesis, and yes, that's the toughest part. Manal, thank you for highlighting. Fear of rejection, failure, making mistakes, criticism for examiners meeting academic standards. Oh, Aruj, itne sare masail. All right. Fear of rejection or failure. बाकी दिनों पे आप चाहे अच्छे बच्चे ना होते हो, मे बी अरूज इज अ गुड स्टूडेंट, बाय द वे आई हैव टॉट हिम. नॉर्मल डेज में हो सकता है आप नालायक स्टूडेंट हो, आप लाइक स्टूडेंट हो, आप नॉर्मल मीडियोकर स्टूडेंट हो, बट एट द डे ऑफ डिफेंस आई ऑलवेज से nobody knows about your research more than you, right? Nobody. Even when I supervise, I always tell my students, you tell me what you have done. I'm here to correct you. I'm here to tell you if you are going in a right direction or a wrong direction. But I am not here to teach you how to do your research. No. Research is a learning process. अगर सुपरवाइजर का काम, ये भी बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बच्चों को जरूरी है कि हमें सुपरवाइजर कुछ नहीं करवा रहे या इस तरह बातें सुनने को मिलती हैं. The thing is कि if it's your project, it's your thing. ठीक है? Supervisors are meant to mentor. They are meant to look over you, monitor कि आप लोग काम सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं, right? काम आप लोगों ने खुद करना होता है, and that is why क्योंकि आप काम खुद से करते हो तो आपसे ज्यादा सुपरवाइजर को भी नहीं पता होगा कि आपने क्या किया है, ठीक है? So always keep it in your mind कि जो मुझे आता है वो यहाँ किसी को भी नहीं आता, उतना अच्छा नहीं आता जितना आपको आता है, and that is true. That is 110% true. आपका प्रोजेक्ट आपसे ज्यादा किसी को भी नहीं आता. And when you start believing in that, it gives you confidence. ठीक है? आपको फेलियर, अरूज ने लिखा कि फेलियर, रिजेक्शन एंड ऑल ऑफ दैट, इसका खतरा आपको कब डर लगता है? जब आप खुद में ही कॉन्फिडेंट नहीं होते. आपको लगता है उन्होंने ये पूछ लिया, मैं क्या कहूंगा. एंड देन देयर इज अ माइंडसेट. उन्होंने अगर ये पूछा तो ठीक है, मैं ये बता दूंगा. Why? Because you are the one who did all the work. Don't you know कि आपको क्या कहना चाहिए, कैसे आंसर करना चाहिए, right? So this is about it. इसलिए रिजेक्शन वाली चीज तो सेल्फ कॉन्फिडेंस से जाती है, उसके लिए कोई और रूल नहीं है. एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस वहां से आता है when you believe in yourself, right? प्रेजेंटेशन डिफेंस की हम इंशाल्लाह कल के मॉड्यूल में और डिटेल में बात करेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी भी कि आंसर्स कैसे करते हैं एग्जामिनर के सवालों को एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? उसके बाद डिफेंडिंग. साजिदा रुस्तम ने लिखा डिफेंडिंग. डिफेंडिंग इज अ थिंग. डिफेंडिंग भी वहीं से आता है बेटा, जब काम खुद किया होता है ना तो डिफेंडिंग इज नो प्रॉब्लम, राइट? और आप सारे बच्चे खुद ही करते हो, इट्स नॉट दैट कि आप लोग खुद नहीं करते हो, बट देन अगेन यू मस्ट हैव द कॉन्फिडेंस टू बिलीव कि हाँ मैंने जो किया है सही किया है. इवन अगर मैंने गलत किया है तो भी आई हैव अ रीजन टू मेंशन. आपको लॉजिक पता होनी चाहिए, ठीक है? रीजन पता होनी चाहिए. एक्सेप्टेंस इज द की. एट टाइम्स आप लोगों ने चीज अपने अंदाज में की होती है, ठीक है? कोई और ग्रुप होता है, कोई और सुपरवाइजर होते हैं, वो और मेथोडोलॉजी फॉलो कर रहे होते हैं, आपके सुपरवाइजर और मेथोडोलॉजी फॉलो कर रहे होते हैं, राइट? सो इट मे बी लाइक कि आप लोगों ने वैसा ना किया हुआ है, दूसरा बंदा क्वेश्चन करे आपने ऐसा क्यों नहीं किया, उधर स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं आमतौर पे, राइट? सो हैव एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट दैट यू माइट हैव डन समथिंग डिफरेंटली, एंड दैट डजंट मीन कि आपको फेल ही हो गए क्योंकि आपने वो जवाब दे दिया.
right? In science, there is nothing right, there is nothing wrong, right? Anything you can justify with a logic, with a reason is right in science. Research क्या है? एक दफा there are so many studies. बाजू का कोई जैसे जीन्स की बात अगर हम करें तो बाजू का क्या होता है कि आप कोई पेपर पढ़ते हो, उसमें उन्होंने कहा होता है, यार ये कैंसर रिलेटेड एग्जांपल्स आती है मेरे माइंड में ऑल द टाइम, कि आप कह रहे हो कि एक पेपर ने स्टडी किया, उन्होंने बताया ओ XYZ जीन इज एन ऑन्कोजीन, ठीक है, ये तो कैंसर कॉज करती है। एंड देन देयर कम्स अनदर ग्रुप, वो कहता है भाई हमने तो स्टडी किया, हमारे केस में तो ये ट्यूमर सप्रेसर निकली है, राइट? और फिर उसके बाद क्या है, एक कह रहे हैं ऑन्कोजीन है, दूसरा कह रहा है ट्यूमर सप्रेसर। हाउ इज इट पॉसिबल कि एक जीन कभी कुछ हो जाती है कभी कुछ हो जाती है, राइट? अब अगर हमारे बच्चे हों, वो तो कहेंगे ओ यार मैं तो फेल हो गया। हाँ क्यों अरूज, कि ये तो इन्होंने तो उल्टा निकाल ली है फाइंडिंग। हाँ, सो इट्स नॉट लाइक दैट। as long as you can defend कि आपकी जीन ऑन्कोजीन आई है, you are good to go. As long as they can defend कि उनकी ट्यूमर सप्रेसर है, they are good to go, right? Everything in science can coexist at the same time. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स coexist कर सकते हैं, right? जब तक कि आप उसको justify कर पा रहे हो. So defending is a thing. साजिदा रुस्तम ने जो बात की. Likewise, I also have feared to deliver my ideas to others. Oh yes, we all have. We all have this fear. और ये कम्युनिकेशन के इश्यूज हैं. इट्स नॉट अबाउट के आपको अपने आइडिया बताने से डर लग रहा है. दिस इज अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बिकॉज यू फील कि मैं ये बात बोलूंगी तो कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, ठीक है? एंड देन देयर इज एन अप्रोच, ज्यादा से ज्यादा गलत ही होगा ना. कैन यू सी द डिफरेंस? एक बंदा एक बात कर सवाल नहीं करता क्योंकि वो डरता है, ठीक है, और दूसरा बंदा कहता है क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा लेकिन मैं पूछूंगा जरूर. विच वन इज बेटर? आई थिंक द सेकंड वन, ठीक है. So this is a communication concern. I hope sometime we can have a very good lecture on communication also, कि वो कैसे improve हो सकती है कैसे नहीं, ठीक है. Last time I think we had one, but ये कि डिफेंस के लिहाज से आई थिंक एक बड़ा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ये कम्युनिकेशन वाला. Alright, that how we can control our anxiety during. Okay, this is a very valid question. Sajida Rustam, anxiety is going to be there for your life, okay? But for the first 2 minutes, I would say, पहले 2 मिनट आपके most of the time, there comes a time जब आप बिल्कुल नम हो जाते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता आगे ऑडियंस में कौन बैठा हुआ है. It takes years for that, right? But अभी आप लोग जिस स्टेज पे हो, अभी आप लोग BS के बच्चे हो, कुछ MS के हो, कुछ में भी PhD के हो, जब तक आप लोग ये स्टूडेंट लाइफ में हो और अपने इनिशियल करियर में, right? Even until now, there are stages where I feel anxious for the first 2 minutes. Anxiety आप लोगों ने कभी नोट किया हो, वो पहले 2 मिनट की होती है, ठीक है? आप हाथ आपका शेक ही होता है, पहले 2 मिनट ही होता है. तीसरे मिनट में तो आप भूल जाते हो कि कोई बैठ के सुन भी रहा है कि नहीं, राइट? सो दिस एंजाइटी इज वेरी नॉर्मल. इस एंजाइटी को हवा नहीं बनाना भाई कि मैं तो बहुत एंशियस होती हूँ, मैं तो डर जाती हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस है. नो 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 नो, हैपेंस टू एवरीबॉडी, एवरीवन, राइट? सो इसलिए एंजाइटी इज नॉट अ बिग इशू, इट्स एवरीवन्स प्रॉब्लम. I would like to quote an example. When I was back in school, I was such an underconfident person. Not that कि अभी मैं बहुत ही कुछ extra confident हो गई हूँ, but I can see it's far better than that one. तो उस वक्त क्या होता था कि if ever I was called on stage for prize or something, my lips would turn white out of anxiety or fear. होता नहीं, आप घबरा जाते हो इतना कि आपका वो ब्लड रश रुक जाता है और आप बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हो, राइट? So then there came a time, I don't know, during my professional studies, I don't know, there was, वो कहते हैं कि एक आइस ब्रेकिंग का टाइम होता है, ठीक है? There is a time जब वो एक आपने जो साइकिल होती है उसको ब्रेक करना होता है. I still don't know when that cycle was broken, but it broke so badly. Now I don't stop speaking. Okay. Okay.
So it happens to everyone. Anxiety is no big deal. I don't think so कि आप लोगों में से कोई disagree करेगा कि आप लोगों को आधा घंटा ही anxiety होती रहती है. ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ? Yes or no? No. Umaima is right. Yes. Nan Kiani is also right. ये पहले 2 मिनट ही होते हैं और ये सबको होते हैं. That's normal. Adrenaline is there. अगर नहीं होगी फिर परेशानी की बात है कि मेरा एड्रीनालिन काम नहीं कर रहा, क्या करें? यस, सिर्फ स्टार्टिंग में. ऑलराइट, सो आप लोगों ने सबने अपने फियर्स बताए एंड ज्यादातर लोगों ने जो फियर बताया है वो डिफेंस में प्रेजेंट करने वाला है. ठीक है, थीसिस जैसा भी फॉर्मेट करे हो किसी को परवाह नहीं है. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट थिंग इज, ये मैं थोड़ा सा जानना चाह रही थी कि आप लोग को चीज परेशान कौन सी करती है. एंड वही बात है कि आपने थोड़ा सा एज्यूम भी किया होता है. मुझे पता था कि डिफेंस की चीजें ही होंगी कि प्रेजेंटेशन देनी है, कैसे दें, क्या करें एंड ऑल ऑफ दैट. Thesis, now coming towards the major aspect of today's presentation, that is thesis formatting. Margins. Margins क्या होते हैं? Left margin, right margin, top margin, bottom margin. आप लोगों में से कितने लोग हैं जो वर्ड यूज करने में फ्लुएंट है? कितने? Yeah, okay. Amira is fluent, Abdul Hasib is fluent, Hassan, Verda, Rahmanullah. Oh wow. Everybody is a master of word. Okay, good, very good. And what do you mean by fluent? Oh, you're welcome, Sajida. So, by fluent, I mean, okay, I'm really happy that most of you are super confident to say yes, we are fluent. And this is the attitude I want in your presentations also. Defense में भी अगर यही attitude रखोगे तो कोई failure वाली thought आएगी भी नहीं. So, fluent का मतलब है, to me, I'm not saying कि आप ऑफिस कोई oh my god कमाल हो जाए कि भाई सारा ऑफिस मेरे से पूछो, मुझे तो हर कुछ ही आता होता है. not saying that. हमारी जो बायोलॉजिकल साइंसेज हैं या साइंसेज हैं, इस तरह की फील्ड्स, कंप्यूटर साइंस के अलावा आई वुड से, इवन जो कंप्यूटर वाले हैं ऑफिस, उनको भी इतना ज्यादा नहीं आता होता. ऑफिस इज नॉट समथिंग जो कि कंप्यूटर वालों की चीज है. हम अक्सर एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आईटी में है तो ये मेरा लैपटॉप ऑन क्यों नहीं हो रहा, चलो आईटी वाला, वो टेक्नीशियन तो नहीं है ना, आईटी में इंजीनियरिंग ही कर रहा है. ठीक है, तो साइंस पढ़ रहा है ना, तो वो हमारी वो ये सोच होती है कि आईटी वाला वो तो मास्टर होगा, एमएस वर्ड, पीपीटी. ये एट टाइम्स सम ऑफ द बायोलॉजिस्ट दे आर सो गुड इन वर्ड एंड पीपीटी एंड एक्सेल. ये खुद में एक साइंस है. एमएस ऑफिस खुद में एक साइंस है. आप जब तक किसी प्रॉब्लम में, आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, थीसिस राइट अप अगर कभी किसी ने किया हुआ है या अभी जो करने जा रहे हैं, जो लिख रहे होंगे, इन दिनों भी बहुत सारे बच्चे लिख रहे होंगे बिकॉज सून यू आर गोइंग टू हैव योर डिफेंसेस. तो ऐसे केस में आप लोगों ने बहुत ज्यादा देखा होगा कि आपको ये ऑफिस उस वक्त ज्यादा समझ आता है जब कहीं आप फंसते हो, है कि नहीं? ठीक है, आपका टेबल आप नीचे करते जा रहे हो लेकिन सारा टेक्स्ट नीचे चला जाता जा रहा है. एट टाइम्स ये वाला मसला होने लग जाता है, राइट? आप उस प्रॉब्लम में आओगे, देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर सोल्यूशन कि अब ऐसा क्या किया जाए कि यार ये ऐसा ना हो. देन यू स्टार्ट गूगलिंग और अब आप चैट जीपीटी से पूछते हो कि मुझे स्टेप वाइज बताओ एंड ऑल ऑफ दैट. दैट्स हाउ यू लर्न. You write, you do errors, you do some mistakes, and then you try to correct your mistakes, and then you are fluent in word. क्यों रहमानुल्लाह एंड हसीब? ऐसा ही है, ऐसे ही सीखे होगे. हाँ, तो हमारे थीसिस में जो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, मार्जिन्स. Do you know? Good, Hassan. So do you know we have a margin tab over there in the word? ऐसा ही है. तो वर्ड में क्या है कि आपके पास मार्जिन्स का भी है. यू कैन कस्टमाइज योर मार्जिन्स. ठीक है, फॉन्ट को भी आप चेंज कर सकते हो. ये तो मेजर माइनर चीजें ये आप सबको ही पता होती हैं. बट द प्रॉब्लम इज कि आई एम इन दैट बोर्ड जिसमें आपको लगता है कि वो वाली कश्ती नहीं होती है जिसमें आपको एज्यूम करते हो कि इनको सब पता है, लेकिन जब थीसिस आएगा तो इन सारी चीजों में गलती होगी. बहुत अच्छे बच्चे भी होते हैं, बहुत अच्छा थीसिस भी करते हैं, ऐसा नहीं है. बट जब थीसिस आता है तो अभी सबको मार्जिन आते हैं. अभी अब्दुल हसीब, मोहम्मद हसन, इन्होंने कहा है कि ये एक्सपर्ट है वर्ड के. हाँ, पता लगे इनका थीसिस आए तो मार्जिन ही टेढ़ा हो. होता है, दैट्स ह्यूमन एरर.
राइट? एट टाइम्स क्या होता है कि आई एम अ रिव्यूअर टू सो मेनी जर्नल्स, मैं जब उनका पेपर रिव्यू कर रही होती हूँ मुझे बहुत ज्यादा गलतियां नजर आती हैं, बट जब आज भी मैं अपना अपना एमएस का थीसिस, पीएचडी का थीसिस, मुझे लगता है मैंने तो बहुत ही फिट लिखा था, कोई गलती निकल नहीं सकती। आई स्टिल रिमेम्बर द अदर डे आई वाज लुकिंग एट माय एमएस थीसिस और मैं पहले पैराग्राफ पे मुझे हुआ यार ये मैंने क्यों लिखा हुआ इधर, ऑफ 2 दफा है, राइट? ठीक है, तो ये चीजें ऐसी हैं कि हमें थीसिस एक ऐसी चीज है कि हमें उस वक्त करते हुए वो मिस्टेक्स नजर नहीं आ रही होती, बट जब हम दूसरे को दिखाते हैं तो ऑफ कोर्स उनको वो चीजें दिखती हैं, राइट? सो थीसिस फॉर्मेटिंग में जो मेजर चीजें हैं वो आपके मार्जिन है, आपका फॉन्ट है, लाइन स्पेसिंग है, एंड हेडिंग्स, पेज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है? टेबल ऑफ कंटेंट, फिगर्स का टेबल, अपेंडिक्स, एब्रिविएशंस भी आप लोग लिखते हो, हर थीसिस में होती है, एंड देन अपेंडिक्स कुछ जगहों पे होता है, कुछ पे जरूरत नहीं होती है। ये वो चीजें हैं, सिर्फ ये वो चीजें हैं, 8 7 8 चीजें जिनका आप ध्यान रखो। और ध्यान रखने का मतलब क्या है? अभी शुरू में किसने कहा था कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम होता है। ध्यान रखने का मतलब है, फॉर्मेटिंग करने का मतलब है कि सब कंसिस्टेंट हो, ठीक है? हर जगह, हर हेडिंग, हर पैराग्राफ में जो कंडीशन आपने पहले पैराग्राफ में लगाई है थीसिस के, थ्रू आउट वो चलती जाए और वो कंक्लूजन तक भी जाएगी, ठीक है? सो दिस इज थीसिस फॉर्मेटिंग। अब एक हम एक्टिविटी एक देखते हैं, ठीक है? नाउ ये टाइम है भाई कि आप लोगों ने एक्टिविटी करनी है। आई टोल्ड यू कि मैं थेरेटिकली ये काम कराना इज वेरी बोरिंग, और ये कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि किसी में दिखाओ चलो मुझे 15 फॉन्ट करके दिखाओ, चलो मुझे स्पेस 1.5 करके दिखाओ, ऐसा तो नहीं करना ना। सो नाउ इट्स मोर ऑफ एक्टिविटी एंड एग्जाम्पल बेस्ड। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, आपको नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में, 3 स्लाइड्स में मैंने कुछ फॉर्मेटिंग के पेजेस डाले हुए हैं। कोई थीसिस है जिसका चैप्टर 3 है और उसका कुछ पार्ट डाला हुआ है, राइट? उन तीनों में आपने स्पॉट करने हैं कि एरर्स कितने, कहाँ कहाँ पे एरर है। एंड यस, ये तीनों तस्वीरें आर फुल ऑफ मिस्टेक्स, इनमें राइटअप की बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं, ठीक है? अब आप लोग इनको गौर से देखोगे इन पिक्चर्स को और मुझे बताओगे कि कहाँ एरर है और एरर किस किस्म का है। कहीं पे आप ये कह सकते हो यही क्लासेस होंगी कि मैम टेबल का एरर है, रेफरेंसेस का एरर है, गलत हुआ है, हेडिंग्स का एरर है, ये जो भी हमने पीछे पढ़े नहीं है कि ये मसाइल हो सकते हैं, ये वो कैटेगरीज है और आपने बताना है कि आपका एरर किधर और किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ठीक है? Now coming towards the first example. All right. Yes. ये आप लोग के पास एक इमेज है, ठीक है? पूरे इमेज को गौर से देखो, टेक 30 सेकेंड्स। इस पूरे इमेज को गौर से देखो और उसके बाद मुझे बताओ कि इसमें क्या क्या गलती है, कहाँ कहाँ गलती है। Write in chat, okay? Write in chats. Observe carefully. ये आपका चैप्टर 3 का लाइन स्पेसिंग। हरीम किस जगह पे? हरीम इज वेरी राइट कि लाइन स्पेसिंग का इशू है। मटेरियल्स और मेथड्स के बाद अगर आप देखो तो बिना वजह की लाइन जगह स्पेस छुटी हुई है, ऐसा ही है, ठीक है? उसके बाद सैंपल कलेक्शन से पहले भी आप देखो बिना वजह की लाइन छुटी। जस्टिफिकेशन, यस, टेक्स्ट इज नॉट जस्टिफाइड, कहीं पे है पहले पैराग्राफ में इट इज जस्टिफाइड और सेकंड वाले में इट्स नॉट जस्टिफाइड। यस, बायोटेक स्क्वाड एंड मलाइका सरफराज, यस, मलिक मुकद्दस, अलाइनमेंट, यस, जस्टिफाइड नहीं है, अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है, यस। और किसी ने क्या बताया? अलाइनमेंट, यस, लाइन स्पेसिंग, यस, स्पेसिंग, यस, पैराग्राफ अलाइनमेंट, अरूज, ब्रिलियंट, यस। आपके यहाँ पे ये बहुत बड़ा मसला है कि पैराग्राफ भी अलाइनमेंट नहीं है। सैंपल कलेक्शन के नीचे आप देखो आपकी फर्स्ट लाइन कहाँ से शुरू हो रही है
और सेकंड लाइन देखो कहां से शुरू हो रही है. यस, मनाल रफीक, ब्रिलियंट. सैंपल कलेक्शन की हेडिंग. हेडिंग में क्या क्या मसले हैं? सैंपल कलेक्शन की हेडिंग में क्या क्या मसले हैं? Sample is not capitalized. Yes. Yes. Full stop after tubes. Yes. Brilliant. Fonts का भी इशू है. Very right. कहीं पे छोटा है कहीं पे बड़ा. Sample is not capitalized. Capital heading. Capitalization. Yes. Yes. अरूज ने एक और अच्छा पॉइंट किया. ये 3-4 जो हैश लगे हुए हैं. Hash, 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 hash. It's not needed. This is a big mistake. 3.1 से शुरू होना चाहिए था ये चीज. ठीक है. It must not have started by hash, hash, hash. This is not right. Brilliant. Thank you for pointing out, Aruj. और hash, hash, hash. Yes. Sadia, Nan, Kiani. True. Materials and methods होना चाहिए. Materials and method. Yes, Varda, you are right. Actual thesis में ऐसे ही होना चाहिए. This is very right. Yes, Romessa. Hashtag. Yes. मुझे आप बताओ. Yes. Yes, yes, yes. PCR, polymerase chain reaction. PCR जब आप किसी चीज का एब्रीविएशन देते हो तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटलाइज होना चाहिए. माहम तारिक, वेरी नाइस, ब्रिलियंट, वेरी गुड. एक और चीज तो आप लोगों ने मुझे बताई नहीं है. यस, वेरी राइट, अरूज, माहम, वेरी गुड. आप मुझे ये बात बताओ, आप लोग टॉप पे जाओ, वहां पे क्या गलती है? चैप्टर 3 से पहले ये जो ऊपर की कहानी दी हुई है, इज इट नीडेड? नो. कौन लिखता है इस तरह MS बायोटेक्नोलॉजी और सेमेस्टर चैप्टर के ऊपर? नोबडी राइट्स दैट. तो ये भी तो मिस्टेक है ना. राइट. यस, इररेलेवेंट हेडर. डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक, इस्लामिक इंटरनेशनल. ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि आप मोस्टली बच्चे हो उधर के, ये तो इसलिए यूनिवर्सिटी. बट द थिंग इज कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या जरूरत है कि इधर ऊपर आप लोग जो है वो डिपार्टमेंट की डिटेल्स दे रहे हो, स्प्रिंग का सेमेस्टर अपना लिख रहे हो. इट्स नॉट नीडेड. वी डोंट नीड दैट. ओके. इसके अलावा any other thing you see is a mistake here? Okay. सैंपल कलेक्शन में एक और मिस्टेक है जो मुझे नहीं बताई किसी ने. वेरी बैड. कौन बता रहा है? सैंपल कलेक्शन वाली लाइंस के नीचे कोलन, कोलन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? यस. ठीक है. सेकेंड लाइन देखो, EDTA ट्यूब्स, फुल स्टॉप. द का टी बड़ा होना चाहिए. नो. यस. मनाल. यस. आमना, मनाल. यस यस यस. गुड. तो फुल स्टॉप के बाद आपका जो दी आ रहा है उसका टी बड़ा होना चाहिए था. ठीक है. सो दीज आर द, यस, वेरी राइट. सो दीज आर सम ऑफ द मिस्टेक्स जो कि आपने, एंड द गुड पार्ट इज कि आप लोगों ने बहुत 80% ऑफ द मिस्टेक्स आप लोग पॉइंट आउट कर पाए. ब्रिलियंट, वेरी नाइस. राइट. अब अगले में भी सर से पाउंड तक देखना है. ओके. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. यस. इसमें क्या मसाइल है भाई? Read carefully. Table number. Yes.
figure PCR products is equal to PCR results. Yes, I need to see your comments. Yes. Table name is not mentioned properly. Yes, yes, yes. Very right, Sadia. Good. The quality. Yes. T should be capital. Okay, okay. किरण अमजद आपने अभी एक बात की उस पे बात होगा. टेबल हेडिंग शुड बी इन कैप्शंस. इसका क्या मतलब है किरण? टेबल हेडिंग शुड बी इन कैप्शन. Kiran, can you please write here, like, what does that mean? Who is this? Below के बाद colon आना चाहिए. Yes. Hassan, right. Yes. ये किसने कहा है? अब्दुल हसीब. Brilliant. Commercial kits should be named. Yes. अगर आप कोई किट यूज कर रहे हो तो आपको उसका नाम लिखना चाहिए. ठीक है, ब्रांड का नेम. यहाँ पे आपने लिखा किट की इंस्ट्रक्शन यूज की. मैन्युफैक्चरर है कौन? आपने नहीं बताया. लास्ट सेंटेंस इज नॉट जस्टिफाइड. यस. उसके बाद यस किरण, मैंने आपका ये पॉइंट इसीलिए रिपीट करवाया बिकॉज आई थॉट कि दिस इज अ मिस्टेक जो आप समझ रहे हो. ठीक है. सो किरण, आज के लेसन से एक अंडरस्टैंड, एक जो हम टेक होम मैसेज ये लेके जा रहे हैं कि टेबल का कैप्शन कभी भी बॉटम पे नहीं होता. यस यस, व्हाट द ब्रिलियंट. सो किरण, अभी किरण बेटा आपने कहा कि टेबल का जो ऊपर इन्होंने टेबल के ऊपर जो इन्होंने डिटेल दी या नेम ऑफ द टेबल या डिटेल कह लो, वो कैप्शन में होना चाहिए. नो, दिस मिस्टेक आई हैव सीन अ लॉट इन स्टूडेंट्स थीसिस. बच्चों को लगता है कि क्योंकि फिगर का कैप्शन नीचे है तो टेबल का कैप्शन भी नीचे आएगा. रॉन्ग. टेबल का कैप्शन हमेशा ऊपर आता है. टेबल की डिटेल हमेशा ऊपर आती है. हमेशा. हिफ्स कर लो इस बात को. ठीक है. टेबल का कैप्शन कभी भी नीचे बॉटम पे नहीं आता. फिगर का कैप्शन वुड ऑलवेज बी एट द बॉटम. राइट. So this is the difference. Kiran, got it? Okay, right. वर्दा ने एक बात कही है, PCR result should be labeled as a figure with its detail. Yes. आपने जेल की तस्वीर लगा दी, बट इसके साथ जेल की पिक्चर किसी भी तरह की हो, it's a figure. It is a figure, no matter what kind of picture it is. राइट. अब यहाँ पे आप देखो इन्होंने जेल की पिक्चर लगाई हुई है, बट नीचे फिगर का कैप्शन किधर आना चाहिए? बॉटम पे. बट देयर इज नो कैप्शन, देयर इज नो फिगर नंबर. इधर फिगर नंबर भी होना चाहिए था, इधर कैप्शन होना चाहिए था तस्वीर के नीचे. ठीक है. आपने सैंपल को 1 2 3 4 5 6 7 कर दिया. हमें तो पता ही नहीं चल रहा पिक्चर देख के कि 1 पे क्या था, 2 पे क्या था, 3 पे क्या था. ये डिटेल आपको फिगर के नीचे देनी चाहिए. इस सैंपल 1 ये था, सैंपल 2 ये था, 3 ये था, 4 ये था. राइट. ताकि पिक्चर को देख के हमें हर चीज पता लग जाए कि पिक्चर में किया क्या गया है, कौन से सैंपल स्टडी किए गए हैं. राइट. सो अभी इस तरह से ये जो जेल लगा दिया, ओके. अब आपने हो सकता है किसी साथ वाले की उठा के जेल थीसिस में लगा दी हो, आपकी हो ही ना. ठीक है. सो दिस इज नॉट अ राइट वे. You must label your figure properly. You must tell us. मुझे नहीं पता अब M, अब तो चलो I am a researcher too, I know कि M for marker है, बट अगर कोई पहली दफा देख रहा है उसको नहीं पता यार आप M किसको कहना चाह रहे हो, M से क्या मुराद है. राइट. सो यू नीड टू मेंशन इन योर फिगर लेजेंड कि ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है और यहाँ पे M इज इक्वल टू मार्कर, 1 इज इक्वल टू दिस सैंपल, 2 इज इक्वल टू दिस, 3 इज इक्वल टू दिस. और ये yes, side headings, points of figure are not even accurately aligned. Yes, very right.
स्पेस बिफोर एंड आफ्टर द, यस, स्पेस इश्यूज भी हैं बहुत ज्यादा, वेरी राइट। उसके बाद एक और चीज, टेबल में एक और मसला है, टेबल में एक और मसला है, टेबल के अंदर क्या है वो, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट ही नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन, यस मुकद्दस, वेरी राइट, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट ही नहीं दिया हुआ, ठीक है। आप डीएनए नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मली यूज होती है, इट मस्ट बी देयर, ठीक है। इसी तरह प्योरिटी की भी तो एक रेशो है ना, ठीक है। तो आप वो ऊपर बताओगे ना कि ये वाली वैल्यू हमने रेशो ली है, राइट। So you must inform the reader or you must inform the reviewer properly कि एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है। अब रिव्यूअर वहां पे ये तो नहीं पूछेगा ये क्या है, ये क्यों किया है, ऐसे क्या किया है। दिस शोज टू द रिव्यूअर, एक इमेज जाता है कि आपने प्रॉपर काम नहीं किया हुआ, राइट, कंप्लीट काम नहीं किया हुआ, अधूरा अधूरा काम है, बस जो मिला उधर लगा दिया, राइट। तो आपकी इन चीजों से, जिस तरह से आपने चीजें दिखाई होती हैं, द वे यू आर प्रेजेंटिंग योर रिजल्ट्स और यू आर डिफेंडिंग योर results, or you are interpreting or showing your results, tells a lot about you as a personality, right? And by personality I mean your professionalism, ठीक है। thesis formatting के बारे में कहा जाता है कि it is a silent way of communicating your professionalism। जब आप किसी का थीसिस देखते हो और वो प्रॉपरली स्पेस्ड होता है, प्रॉपरली अलाइंड होता है, आपको उसकी पर्सनालिटी का एस्पेक्ट पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है कि ये क्या है, बहुत प्रोफेशनली रिटन थीसिस है, राइट। सो इट्स अ साइलेंट कम्युनिकेटर, ठीक है। आप बोल बोल के नहीं बता रहे हो, उसको देख के सामने आ जाएगा कि कितने प्रोफेशनल हो आप। और ये इमेज बनता है, ये इमेज बनता है whenever I any of my student comes to me, और अगर उसका थीसिस बहुत अलाइंड होता है तो मुझे उधर ही पता चल जाता है कि बच्चा बहुत सीरियस है, इसने थीसिस को बहुत टाइम दिया है। और अगर पुअरली रिटन थीसिस होता है तो वो भी पता लग जाता है, और उसका क्या इंप्रेशन जाता है कि आपने सब बहुत जल्दी में किया है, ठीक है। एवरीथिंग यू रश्ड अप एवरीथिंग, दैट इज व्हाई कुछ रह गया, कुछ छोटा रह गया, कुछ बड़ा हो गया, राइट। सो thesis is a silent communicator of your professionalism, and I believe that all of you who are in this session today would want to appear as a professional student. Science requires professionalism. वो जो होता है ना साइंस में, okay, so there are so many people who would say साइंस में इंग्लिश नहीं मैटर करती। I don't agree with that. कई लोग कहते हैं ना साइंस में अंग्रेजी नहीं मैटर करती, वे करती है, बहुत मैटर करती है। आप कभी कोई पेपर गंदी सी इंग्लिश में लिख के सबमिट करा के देखो, एडिटर ने वापस ना भेजा तो आप कहना, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट्स बहुत वेग हैं एंड दे आर नॉट रियली गुड एंड नॉट इन द फेवर ऑफ स्टूडेंट्स आल्सो, राइट। वो नहीं होता कि आप किसी चीज पे एफर्ट नहीं करना चाह रहे होते तो आप कहते हो यार इसकी वो इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस में इंग्लिश मैटर करती है। आपने कभी कोई पेपर देखा है जो टूटी फूटी इंग्लिश में हो? कभी आपने कोई नेचर में, बीएमजे में, लैंसेट में कभी आपने कोई ऐसा पेपर पब्लिश हुआ देखा है जिसकी अंग्रेजी जो है वो ऐसे टूटी फूटी हो? नो। हमारा मीडियम ऑफ पब्लिकेशन ही इंग्लिश है। उर्दू अनफॉर्चुनेटली इतनी स्ट्रॉन्ग हो नहीं पाई कि उसमें पब्लिकेशंस हो, ठीक है। तो इसलिए इफ वी हैव टू compete with the world, if we have to compare ourselves with the international students and international researchers, तो हमें वही पेस पकड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो चीज है यहाँ से आई बिलीव कि आप जो बच्चे ये टॉक सुन रहे हैं इसके बाद वो ये बात नहीं बोलेंगे कि इंग्लिश साइंस में मैटर नहीं करती, ठीक है। सो इट डज मैटर। एंड जब हमारा इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ हम कॉम्पीट करते हैं हर चीज में, स्कॉलरशिप्स में, राइटअप्स में, पब्लिकेशंस में, जब भी ये बाहर कोई पोजीशन, पीएचडी पोजीशन, एमएस पोजीशन कोई देखना होता है तो हम उन्हीं के साथ कॉम्पीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर हमें वो आना चाहिए जो उनको आता है, राइट। सो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटअप्स आल्सो। ओके, तो इसमें तो ऑलराइट, गुड इनफ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। भाई आप लोग तो स्मार्ट हो गए हो, हाँ।
ये क्या है? अब मुकद्दस ने बता दिया ना कि तुम लोगों ने एंड नोट किया है, अब तो रेफरेंसेस वाली चीज पे तो अब तुम लोगों से ही सवाल होंगे। ठीक है, बताओ कि रेफरेंसेस में क्या मसला है, क्या मसला है जो इस पिक्चर को मैंने इधर डाला? What is the problem? Yes, people, not cite correctly. Of course, Maham, that's why it's here. It's not in APA style. Yeah, okay. Style is problem. अच्छा, पहले रेफरेंस में मुझे बताओ गलती क्या है? Yes, साजिदा रुस्तम, ब्रिलियंट। साजिदा ने ये पॉइंट आउट किया कि आप देखो 1 के बाद डॉट है, 2 के बाद डॉट है, 3 के बाद ब्रैकेट आ जाती है। Why so? नंबरिंग का फॉर्मेट गलत है, कंसिस्टेंट नहीं है, कैपिटलाइजेशन नहीं है। नैन कियानी, मनाल रफीक, यस, कैपिटलाइजेशन नहीं है। जॉनसन का जे छोटा है, आगे स्मिथ और ब्राउन के कैपिटल वर्ड हो गए। ठीक है, 5वें में इन्होंने क्या किया हुआ है? 5th में ऑथर्स, ईयर्स एंड देन टाइटल्स। 5वां वाली में देखो इन्होंने क्या किया हुआ है। एक तो ये कि 5 के बाद हाइफन डैश लगी हुई है, आप लोग देखो तो 1 2 के बाद डॉट डॉट है, 3 के बाद ब्रैकेट लगाई हुई है, 4 के बाद फिर डॉट है, 5 के बाद डैश आ जाती है। सो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन दिस। जॉनसन का जे छोटा है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि 5th वाले में तो सिर्फ लिंक दे दिया है। आपको पता है कि इन, आप लोग बताओ बल्कि मुझे, कि लिंक्स को रेफर करने का क्या तरीका होता है? एपीए में कोई तरीका है? यस, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। आपको पब्लिशर दिया हुआ है, रेफरेंस नंबर 1 में जर्नल का नाम है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद जो 5th में है वो सिर्फ लिंक टाइप कर दिया है। हम कभी भी लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस में ऐसे लिंक नहीं डाल देते होते, राइट? हर रेफरेंस स्टाइल का, एपीए का भी अपना तरीका है लिंक को साइट करने का। ठीक है, तो हम लिंक्स की साइटेशन के लिए भी प्रॉपर एक साइटेशन देते हैं। ठीक है, कि कल आप लोगों ने शायद रेफरेंसिंग वाले उसमें किया हुआ भी हो, राइट? उसके अलावा क्या प्रॉब्लम है? ओके, मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे आप लोगों ने कभी कोई पेपर्स देखे हैं? जब बात हो ही रही है तो मैं आपको एक और चीज भी बताती हूँ। एट टाइम्स आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ पेपर्स होते हैं उनके ऊपर लिखा हुआ होता है इम्प्रेस, और कोई पेज नंबर नहीं आ रहा होता। कभी ऐसा आपको देखना हुआ है? हैव यू एवर बीन थ्रू अ पेपर जिसके ऊपर लिखा हो इम्प्रेस और कोई पेज नंबर शो नहीं हो रहा होता? देयर आर सम केसेस। अब यहाँ पे यानी मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि अगर कभी आप किसी ऐसे पेपर को साइट करते हो जिसकी पूरी इंफॉर्मेशन है लेकिन पेज नंबर नहीं है, सिर्फ इम्प्रेस लिखा हुआ है, दैट इज नॉट अ रॉन्ग रेफरेंस। ठीक है, जब इम्प्रेस का मतलब है कि अभी तक वो ऑनलाइन पब्लिश नहीं हुआ प्रॉपर। ठीक है, अभी तक उसको पेज नंबर एलोकेट नहीं हुआ जर्नल के अंदर। ठीक है, तो वो प्रेस के अंदर है, राइट? यानी पब्लिकेशन के प्रोसेस में है, बट इट हैज नॉट बीन असाइंड अ स्पेसिफिक नंबर एज येट, राइट? तो ऐसे जो पेपर्स होते हैं आप उनको साइट फिर भी कर सकते हैं। ओके, डेट भी नहीं है, मिसिंग द ऑथर ऑर्गेनाइजेशन नेम। ऑर्गेनाइजेशन नेम क्यों चाहिए अरूज? ऑथर को ऑर्गेनाइजेशन नेम क्यों चाहिए हमें? रेफरेंस 5 तो गलत है, उस पर लिंक प्रॉपरली साइट होना चाहिए। ऑथर का एफिलिएशन और वो सब हमें चाहिए होता है जब हम पेपर लिख रहे हो, तो हम बताते हैं कि ये ऑथर फलां इदारे का है, ये ऑथर फलां डिपार्टमेंट का है, इस मुल्क का है। ठीक है, तो जो ऑथर की एफिलिएशन है, यस, सिर्फ लिंक नहीं चाहिए होता, हमें प्रॉपर रेफरेंस देना होता है उसका भी। ठीक है,
अब न्यूयॉर्क का एन बड़ा होना चाहिए, वाई बड़ा होना चाहिए, न्यूयॉर्क इज अ सिटी, ठीक है, पहले रेफरेंस में वो भी नहीं है, राइट। Author your organization, author, okay, so by that you mean जैसे WHO है, ठीक है, ये author name होना चाहिए या इस तरह के organization, yes you are right, okay। एक और गलती, एक और गलती, एक और गलती इसमें, ऊपर से नीचे तक देखो क्या गलती है गाइस, ऊपर से नीचे तक देखो इसमें क्या गलती है। Yes, सादिया साबिर got it right, सादिया got it right। पेज लिखा हुआ है, पेज नंबर है ही नहीं कोई आगे, सिर्फ पेज लिखा हुआ है। कि रेफरेंसेस की एपीए में जब आप ऐसे हेडिंग देते हो आप उसको अंडरलाइन नहीं करते, दिस इज नॉट एपीए फॉर्मेट, यू जस्ट राइट डाउन द हेडिंग, देयर इज नो पॉइंट अंडरलाइनिंग दैट हेडिंग। यस माहम, ब्रिलियंट, यस। सो ये दो मिस्टेक्स थी जो रह गई थी, राइट, बाकी तो आप लोग वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, आई एम थॉरली एंजॉयिंग दिस एक्टिविटी सेशन। अब अभी हम लोगों ने बात क्या की अब तक, हमने कहा कि जी थीसिस फॉर्मेटिंग के ये कंपोनेंट्स होते हैं और इन सब कंपोनेंट्स का ख्याल करना होता है, और उसके बाद हमने ये कहा कि हमने देखा कि कौन कौन सी चीजों में प्रॉब्लम था और हमने आइडेंटिफाई कर दिया, राइट। अब इस आइडेंटिफिकेशन का मकसद क्या था कि नेक्स्ट टाइम जब आप लोग करोगे तो आपको पता है कि ओ यार ये गलती मैंने नहीं करनी, क्यों, बिकॉज दिस वाज एरर, ठीक है, ये तो एरर है, राइट। तो नाउ यू विल बी एबल टू रिव्यू योर ओन थीसिस, और उसमें आप ये ब्लंडर अगर आपको कहीं पे नजर आते हैं तो आप उनको आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज थीसिस कंप्लायंस। कंप्लायंस क्या होती है? कंप्लायंस का मतलब होता है कि देयर आर अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, देयर इज अ सर्टेन पॉलिसी जो किसी इदारे की है, किसी सिस्टम की है, एंड यू आर फॉलोइंग दैट, दिस इज कॉल्ड कंप्लायंस। कि आप कुछ भी कर रहे हो आप उसके अकॉर्डिंगली कर रहे हो, राइट। अब ये जो हमने थीसिस की चीजें अभी तक देखी, ये हमें पता है कि अक्रॉस द ग्लोब एपीए चलता है तो हमने उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली देखा, राइट। बट देन देयर आर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स जो कि यूनिवर्सिटी में भी दिए होते हैं, ठीक है। अब इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अपने कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। When I was studying, my university had its own format कि नहीं ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये ऐसे होनी चाहिए, ये ऐसे होने, जैसे एक बहुत छोटी सी एग्जांपल है, फॉर्म सेट्स में जब मैंने जो थीसिस किया था वहां पे वो कहते होते थे कि फिकर एक न्यू पेज पे जाएगी, फिकर टेक्स्ट जहां पे ऊपर लिखा हुआ है उसके नीचे ही तस्वीर नहीं आ सकती, या अगर ऊपर तस्वीर आ गई है नीचे आप टेक्स्ट नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि फिकर अकेली होनी चाहिए उस पेज के ऊपर अपने कैप्शन के साथ, दैट्स अबाउट इट, ठीक है। दिस वाज अ रूल बैक देयर। अब इस्लामिक में ऐसा कोई रूल नहीं है, आप टेक्स्ट के बीच में भी डाल सकते हो फिगर, ठीक है। तो अब क्या है, जो बच्चा उधर पढ़ रहा है उसको कंप्लाई करना है वहां की गाइडलाइंस के साथ, जो बच्चा यहाँ पढ़ रहा है उसको कंप्लाई करना है यहाँ की इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइंस के साथ, दिस इज कॉल्ड कंप्लायंस, राइट। सो थीसिस कंप्लायंस मींस ये नहीं कि नस्ट का थीसिस किसी का उठा के तो इस्लामिक में आके वो वैसा फॉर्मेट बना लो और बाद में कहो मैं तो यही फॉलो करूंगा क्योंकि नस्ट में बच्चे ऐसे ही करते हैं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। whenever you are in a particular institute you have to follow its own guidelines, वो ही उसकी पॉलिसी होती है, वो ही उसका एक तरह से क्या होता है कि regulations होती हैं, and you have to abide by the rules, strictly follow the regulations and policies and thesis formatting guidelines, ठीक है। सो थीसिस कंप्लायंस के लिए एक चीज हो गई यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस कि हमारा लोगो इधर आएगा, सुपरवाइजर का नेम इधर आएगा, आपका नाम इटैलिक्स होगा, बॉटम पे आप सिर्फ साल लिखते हैं, कुछ यूनिवर्सिटियां कहती हैं बॉटम में सेमेस्टर भी लिखे, राइट, पहले टाइटल पेज पे, तो ऑल दीज थिंग्स मैटर, राइट। तो आप लोग को फॉलो करनी होती है, कंप्लायंस दिखानी होती है यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस के साथ। नंबर 2,
एथिकल अप्रूवल, राइट? ये नॉर्मली आपको चाहिए होता है जब आप वेट लैब कर रहे होते हो। हमारे वाले केसेस में आपको, आप फर्स्ट करो कहते हो कि मेरा ये प्रोजेक्ट है और इसमें मैं पेशेंट्स यूज करूंगा, इसमें मैं फलां चीज इस्तेमाल करूंगा, ये होगा वो होगा, तो आपको क्या होता है कि आपको एथिकल रिव्यू बोर्ड होता है, हर यूनिवर्सिटी का अपना एथिकल रिव्यू बोर्ड होता है, ERB, यानी जो भी आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो वो विद इन द एथिक्स, फ्रेम ऑफ एथिक्स को फॉलो करनी चाहिए, उसके अंदर ही वो होनी चाहिए, ठीक है? उसकी लिमिटेशंस को फॉलो करे, जैसे उसके रूल्स हैं, जो वो अलाउ करता है वो होगा, जो वो अलाउ नहीं करता वो नहीं होगा, एथिकल बोर्ड जो होता है, ठीक है? सो अब कंप्लायंस एक तो हो गया कि थीसिस फॉर्मेटिंग के लिए यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस है, थीसिस करने के लिए, रिसर्च करने के लिए एथिकल अप्रूवल बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो उसके साथ भी आपको कंप्लाई करना है, ठीक है? ओ, तीसरी चीज आ गई, प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म क्या होता है? Plagiarism is copying the content of somebody else and claiming it to be yours. आपने अपना थीसिस किया, आपने अपना थीसिस किया, किसी और का पूरा थीसिस उठा के उसमें डाल दिया। अब आप अपने थीसिस को नाम दे रहे हो कि ये मेरा टाइटल है, मेरा नाम है, सब कुछ है, अंदर आपने सारा छापा हुआ है, या copying someone else's work, साजिदा, राइट? तो क्या है? दिस इज कॉल्ड प्लेजियरिज्म, ठीक है? कि आपने किसी और की चीज को लेके आप उस पे बस कह रहे हो कि ये मेरी चीज है, ये मेरा कंटेंट है, ठीक है? दिस इज हाईली अनएथिकल एंड अनएक्सेप्टेबल इन साइंटिफिक वर्ल्ड। दिस इज नॉट अलाउड। देयर इज अ सर्टेन रेंज। जैसे अब आप थीसिस करते हो, आपको रियलाइज होगा कि कुछ वर्ड्स और टर्म्स ऐसी हैं जो हर कोई इस्तेमाल करता है। If I'm working on breast cancer, I'll be writing breast cancer, breast cancer, breast cancer over and over again in my thesis. ठीक है? जब उसका प्लेजरिज्म निकलता है, ब्रेस्ट कैंसर हर जगह हाईलाइट हुआ होता है, ये तो प्लेजरिज्म है। इस तरह के लफ्जों की वजह से हमारा अक्रॉस द ग्लोब और हमारा हायर एजुकेशन मिशन भी ये अलाउ करता है कि आप 19%, लेस देन 20 इज अलाउड प्लेजरिज्म लिमिट, ठीक है? ये बात आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि थीसिस में कितना प्लेजरिज्म हो सकता है, लेस देन 20%। 19 पे आपका थीसिस एक्सेप्टेबल है, ठीक है? और ये क्यों होता है? ये इन्हीं लफ्जों की वजह से। If everybody is doing PCR, they're all right in PCR. PCR has a standard protocol. टेम्परेचर बदल सकता है, टाइम बदल सकता है, प्रोटोकॉल तो नहीं बदल सकता ना। आप उसी बेसिक प्रिंसिपल को यूज करते हुए क्या करते हो, कुछ कंडीशंस ऑप्टिमाइज कर लेते हो, राइट? बट पीसीआर तो पीसीआर ही रहेगा। पीसीआर को आप निकनेम तो नहीं दे सकते ना कि ये मेरा थीसिस है, मैंने प्लेजरिज्म हटाना है, इसको कुछ और कह दो, ठीक है? सो इस वजह से जो अथॉरिटीज होती हैं, दे अलाउ कि आप 19% थीसिस एक्सेप्टेबल है, वो इन्हीं लफ्जों के लिए। कहीं ब्रेस्ट कैंसर यूज हो रहा है, बार बार यूज हो रहा है, कहीं पीसीआर यूज हो रहा है, बार बार यूज हो रहा है, ठीक है? जीन का वर्ड बार बार आ रहा है। इस तरह के अल्फाज को अकोमोडेट करने के लिए इतनी % अलाउड होती है, ठीक है? एक और चीज, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, साइनोनिम्स यूज करते हैं। आप लोग करते हो? हाँ, साइनोनिम्स यूज करते हो? नहीं किया करो, ओके? यस, अभी अरुष ने कुछ बोला है, या तो हम कभी कॉपी नहीं भी होता है, इनफैक्ट इन टेक्स्ट साइटेशन भी डाली होती है, इट्स शो प्लेजर, यस, क्योंकि किसी और का भी नाम वो हो सकता है ना इन टेक्स्ट वाला। इन्हीं चीजों के लिए उन्होंने क्या है कि इतनी लिमिट दी हुई है कि 19% कर लो, ठीक है? अभी आप सबसे से मैंने पूछा कि आप साइनोनिम्स यूज करते हो, तो बच्चों ने कहा यस। हाँ, साइनोनिम्स मैं बताना ये चाह रही हूँ, आपका टर्निटिन इज वेरी स्मार्ट। अगर आप कहते हो ना कि the gene expression was observed to be increased, full stop, आप क्या करते हो, इंक्रीज की जगह लिख देते हो एलिवेटेड, ठीक है? दिस इज साइनोनिम, राइट? रीफ्रेजिंग में फर्क है, साइनोनिम यूज करने में फर्क है। इस सेंटेंस में आपने क्या किया, जीन एक्सप्रेशन इज इंक्रीज्ड, आपने कहा कि यार इंक्रीज में तो प्लेजरिज्म आ रहा है, चलो मैं इसको एलिवेटेड कर देती हूँ।
अब टर्निटिन इज वेरी स्मार्ट. आप लोग को शायद इस बात की रियलाइजेशन नहीं है, बट टर्निटिन क्या करेगा, एलिवेटेड के अलावा बाकी पूरा प्लेजरिज्म में दिखाएगा, क्योंकि सेम वही जुमला उसने कहीं और भी देखा हुआ है. ठीक है, वो सिर्फ एलिवेटेड को शो करेगा कि ये प्लेजरिज्म नहीं है, बाकी पूरी लाइन पे वो प्लेजरिज्म दिखाता है, प्लेजराइज दिखाता है, राइट. सो यूजिंग synonyms only is not a good idea. The good way and the most beneficial way is to rephrase. Rephrase का क्या मतलब है, खुद से दोबारा लिखो. ठीक है, जो बेस्ट वे होती है वो ये होती है कि आप खुद से चीज लिखो, उसके बाद उसको ठीक ठाक करा दो. अगर मसाइल है, ग्रामर का है, कुछ है, इस तरह से उसको ठीक कर दो, राइट. बट आप लोग जब बहुत ज्यादा इस तरह synonyms यूज करते हो तो इट ऑल्सो कम्स अंडर plagiarism because Turnitin is not, right. Yes, पूरे जुमले को लिखो. Gene expression was increased, right? तो आप लिख सकते हो the expression of XYZ gene was higher, was increased, was elevated. Now maybe somebody, अब तो इतनी वैसे पब्लिकेशन आ जाती हैं, आप जब रिफ्रेश करके भी लिखते हो वो भी किसी और ने लिखा हुआ होता है, राइट. बट देन अगेन देयर इज अ पैटर्न, स्पेसिफिक पैटर्न. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, क्यूज होते हैं टर्निटिन के लिए, जो उसको पता लग जाता है कि ये खुद से, मतलब ये किसी का उठा के कॉपी नहीं किया गया, राइट. सिमिलैरिटी इंडेक्स. प्लेजरिज्म इज कि किसी का छाप रहे हो आप. सिमिलैरिटी इंडेक्स इज कि बिल्कुल किसी की तरह की चीज. ठीक है, जैसे होता है बाज़ औक़ात आप किसी को कहते हो कि आप इसके ऊपर इंट्रोडक्शन, थीसिस के इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू में अक्सर बच्चे एक काम करते हैं कि उसी टॉपिक पे अगर कोई रिव्यू पेपर होता है पूरा वही छाप के अंदर डाल देते हैं. ठीक है, और वो फिर आ जाता है सिमिलैरिटी इंडेक्स, ये तो सेम चीज है. ठीक है, सो सिमिलैरिटी इंडेक्स को भी आपने अवॉइड करना है, और जब आप सिमिलैरिटी इंडेक्स अवॉइड करते हो इनडायरेक्टली आपका प्लेजरिज्म कम हो जाता है. ठीक है, एंड उसके बाद आप लोगों ने थीसिस में अपना देखा होगा कि फॉर्मेट में एक चीज होती है डिक्लेरेशन, जिसमें आप हलफ उठाते हो कि ये जो मैंने काम किया है ये मेरा अपना काम है एंड ये किसी और ने नहीं किया हुआ, और ना ही मैंने ये किसी और जगह पे पब्लिश कराया हुआ है. इट्स टोटली माय वर्क, आई ओन इट, मैंने इसको किया, मैं ही इसको राइट अप कर रहा हूं, सो आई एम द सोल ऑनर ऑफ दिस वर्क, राइट. सो उसको हम क्या कहते हैं कि ये डिक्लेरेशन है. और कॉपीराइट क्या होता है? Anybody who has an idea about copyright? Copyright. आप लोगों ने कभी एक चीज नोट की होगी कि कभी आप गूगल पे जाते हो, आप कोई इमेज देखते हो, कभी आप लोगों ने देखा है कि कुछ इमेजेस होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है लाइसेंसिबल. लाइसेंसिबल क्रेडिट देना, काइंड ऑफ परमिशन लेके करना, कॉपीराइट जिसके पास होते हैं, क्रेडिट देना भी कह सकते हैं. आप लोगों ने ऐसे इमेजेस देखे हैं कि नहीं? आप लोग गूगल पे जाओ, अगर आपको इस यस मनाल ने देखे हैं, आप लोग लिखो कोई भी इमेज का अगर ऊपर नाम लिख रहे हो, ठीक है, तो आप लोग एक बात ऑब्जर्व करोगे, कईयों के ऊपर लिखा होता है लाइसेंसिबल, लाइसेंसिबल, लाइसेंसिबल. इसका क्या मतलब है कि उसका कॉपीराइट किसी और के पास है. ठीक है, और वो आप उसकी इजाजत के बगैर यूज नहीं कर सकते. क्रेडिट देना इस साइटेशन कि आपने उसका रेफरेंस दे दिया. किरण, क्रेडिट देना इज कि आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हो या साइट करके या रेफर करके. बट कॉपीराइट का है कि आप उसकी इजाजत के बगैर यूज नहीं कर सकते. ठीक है, सो यस, कॉपीराइट इज रहमानुल्लाह, या राइट. तो आप क्या करते हो कि आप उसको पहले मैसेज करोगे कि मैं तुम्हारा ये इमेज यूज करना चाह रहा हूँ, वो आपको कॉपीराइट देगा, तो आप वो तस्वीर यूज कर सकते हो. अगर आप नहीं करोगे तो आप पे केस भी हो सकता है. ठीक है, यस, सो दिस इज कॉपीराइट. ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. ये वो चीजें हैं जो कंप्लायंस बनाती हैं. कहीं कॉपीराइट है तो इजाजत लो, डिक्लेरेशन है तो ट्रूथफुली ऑनेस्टली डिक्लेयर करो, सिमिलैरिटी इंडेक्स प्लेजरिज्म जितना अलाउड है उस लिमिट को फॉलो करो. Turnitin also gives plagiarism for your AI content.
तो आप लोग को जब थीसिस का हम प्लेजरिज्म निकालते हैं, हमें एआई भी पता चल जाता है अल्टरनेटिव में, ठीक है? सो यूज एआई केयरफुली. ओके. हाँ, गुड क्वेश्चन. ये मैंने इसलिए डाला बिकॉज मैं जानना चाह रही थी कि आप लोग का सोच. मुझे आप ये बताओ, ये स्लाइड में आपको नजर आ रहा है कुछ? हाँ. सो दिस इज अ डिस्कशन, ठीक है? मैं इधर डिस्कस करना चाह रही हूँ. कैन अ परफेक्टली रिटन थीसिस फेल? आप कहते हो कि मैंने बहुत परफेक्ट लिखा है थीसिस, क्या वो फेल हो सकता है? आपके थीसिस आया, बहुत प्यारा लिखा हुआ है, राइट, सब राइट हुआ हुआ है, सारे चैप्टर्स कंप्लीट हैं, but still do you think your thesis can fail? Yes. So Kiran, why can your thesis fail? Kuratulan, Promesa says maybe fail हो सकता है. Okay. So अगर हो सकता है fail तो किस सिनेरियो में? Yes. If we fail to defend it, yes. If this work is already done by someone, yes. Yes. Plagiarism or copyright, yes. And if you have written a very beautiful thesis, you send it to the administration department or program office, and they are like, आपने तो हमारा format follow ही नहीं किया, वापस thesis, right? So कहने का मतलब ये है कि compliance is a very important aspect. आप बिल्कुल सही लिखा होगा, सब कुछ ठीक किया होगा, but if it is not following a certain format, ठीक है, फॉर्मेट की इंपॉर्टेंस बताना चाह रही हूँ कि एक सर्टेन फॉर्मेट और कंप्लायंस अगर आपने नहीं शो की भी यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस के साथ, तो इट कैन स्टिल फेल, योर थीसिस कैन स्टिल फेल. यस, वेरी राइट, वेरी राइट. तो कंप्लायंस और फॉर्मेटिंग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. Okay, students, what is an abstract? Bio squad, can I please take a 2 minutes break? I need to bring my charger. Okay, ma'am. All right. As we are on a few minutes break, kindly focus on the slide, read the points, and share your learnings on the chat box. In the chat box. I really hope कि आप लोग सेशन एंजॉय कर रहे होंगे. I really hope कि आप लोगों की learning हो रही होगी. We will conclude the session within 15 minutes. We will try our best because it's been more than 1 hour. And I really hope कि आप लोग को एक्टिविटीज पसंद आई होंगी, आप लोगों ने इससे सीखा होगा. Anyone here who want to share their point? Any learning? Assalamu alaikum. I want to share something. वालेकुम Okay, अस्सलाम so जी अक्सा. okay, so Dr. Javeria के साथ मैंने 25th and 26th का सेशन लाइक किया था. तो मेरा लाइक अब जो नया वाला आया है लाइक एंड 22nd and 23rd probably उसमें मेरा रजिस्टर्ड होगा या उसमें होगा. I don't really remember that. Like I don't really know that. मैम जवेरिया ने क्वेश्चन सुन दिया है. She will answer your question. Oh, Aksa, that's altogether a different thing. ठीक है, वो वाला जो है it's not related to BioSquad 25, 26 वाला, ठीक है. तो वो
It's an independent session. So it's good that you are attending today's as well, or वो भी attend कर. Okay, ma'am. Yes. Okay. Sorry guys for the interruption. I had to charge. I think It's I totally need to fine go. now. Wait. Okay. Yeah. Yeah. So, good. We And can. you can continue and we will wind up within 15 minutes, okay? Okay. Okay, thank Okay, you. guys. So coming towards writing an outstanding abstract. एब्स्ट्रैक्ट के बेसिक पार्ट्स अगर आप लोग अपनी स्लाइड में देखो तो आपको दिख रहा होगा कि देयर आर 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है, आपका एब्स्ट्रैक्ट में सबसे पहले आप प्रॉब्लम बताते हो, उसका ऑब्जेक्टिव बताते हो, मेथोडोलॉजी, की रिजल्ट्स, कंक्लूजन. आई होप कि आप लोग ये चीजें वैसे पहले कर चुके हो पिछले मॉड्यूल्स में. ठीक है, अब व्हाट इस स्लाइड में जैसे ऐड किया गया मैंने कि भाई कौन सी ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो किसी भी एब्स्ट्रैक्ट को अच्छा बनाते हैं. शॉर्ट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कम्युनिकेटिंग होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए आपका एब्स्ट्रैक्ट, राइट. अब इससे रिलेटेड मैंने एक एक्टिविटी रखी है नेक्स्ट में. आपके पास ये 2 एब्स्ट्रैक्ट है, एक आपको अपने लेफ्ट पे नजर आ रहा है, एक राइट पे नजर आ रहा है. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये 2 एब्स्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं किसी ने, आपके पास ये आ रहे हैं और आपको कोई एक अप्रूव करना है, which one would you approve? Students. First one, biotech squad would approve first one. Second किसने कहा है? Second, Umayma, Abdul Hasib. Umayma and Abdul Hasib, they are right. Okay, since we are really short of time. So, मेरे साथ होने वाले सेशंस आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है उस चीज के कि जो in my earlier life I was with an underconfident person and now I find time always short to speak. ठीक है, अभी भी हमें हबीबा ने डेडलाइन दे दी है. We have to like conclude it immediately. Ma'am, you can continue if you want to, but because Yes, I want बच्चों to का because I think I need to deliver the whole thing. Huh? Otherwise, It's up to you. Okay. It's up to you. But हमारे पास I'll लिमिट still नहीं है. try. Okay. पॉइंट इज के ना वो रिकॉर्डिंग बड़ी हो जाती है और बच्चों का जो फोकस पॉइंट है फोकस नहीं रहता. दे कांट एब्जॉर्ब एवरीथिंग. हमारे पास ये जो ऑडियंस है ये हमारे पास काफी सेशंस में पीछे रही है और सबकी ही शिकायत थी कि सेशन लंबे हो जाते हैं. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है. यू कैन कंटिन्यू द वे यू वांट. भैया इस ऑडियंस ने अब कहा ना ऐसा तो उसका मुझे बता. मैं वापस ऑडियंस से खुद ही पूछ नहीं क्या चाहती है और आप Audience, are you good to go? Audiences, it's a very interactive session. ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें हिट्स करके जाना है या absorb भी करके जाना है. Yes, audience is happy. Yes. We can continue. That's Okay. good then. That's good Yeah, then. yeah, ma'am. yeah. आप All continue right. करें. तो जिन्होंने कहा था कि राइट साइड वाला और सेकंड वाला they were right. अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको कहा कि एब्स्ट्रैक्ट के बेसिकली 5 कंपोनेंट्स होते हैं, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, मेथड्स, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन. तो ये जो आपका राइट साइड वाला एब्स्ट्रैक्ट है इसमें हर वो चीज उन्होंने एड्रेस की हुई है. ठीक है, उन्होंने बताया कि क्या बैकग्राउंड है, उन्होंने बताया ऑब्जेक्टिव क्या था, उन्होंने फिर मेथड्स, रिजल्ट्स और कंक्लूजन. आप लोगों ने कितने बच्चे हैं जो फेमिलियर है इस टर्म के साथ? एलिवेटर पिच. गुड सादिया, गुड टू गो. एलिवेटर पिच. How many of you are familiar with the word or term elevator pitch? लड़कों को पता होगा, जो स्पोर्ट्स वगैरह पसंद करते हैं उनको भी में भी पता है. एलिवेटर पिच ये होती है कि देखो आप जब किसी से फर्स्ट टाइम आपके पास अगर फर्स्ट करो कोई आप किसी कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, एक एग्जांपल है, आप जब इंटरव्यू देने जा रहे होते हो तो आपके बारे में आपसे पूछा जाता है, ऐसा ही है. आप अब अपनी पूरी जिंदगी की रुदाद आपने उसको पहले उस 2 मिनट में बतानी होती है. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. ठीक है, अब आप ऐसे तो नहीं बताते ना कि मैं पैदा हुआ, फिर मैं बड़ा हुआ, फिर मैं स्कूल गया, फिर मैंने ऐसे किया वैसे किया, फिर मैं कॉलेज गया, ऐसे तो नहीं बताते ना. ठीक है, रुमैसा, ओके, यस यू आर राइट. रिसर्च पेपर, रुमैसा ने अच्छा क्वेश्चन किया. उसने कहा है कि जब हम आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें फर्स्ट वाला एब्स्ट्रैक्ट होता है. रुमैसा, whenever we are writing
रिव्यू आर्टिकल तो पहला एब्स्ट्रैक्ट फॉलो होता है, जब आप रिसर्च आर्टिकल लिखते हो तो सेकंड वाला फॉलो होता है। जो एक्सेलेंट है एब्स्ट्रैक्ट वो सेकंड वाला ही है, बट जो रिव्यू पेपर्स और थीसिस होते हैं उनमें नॉर्मली हम फर्स्ट फॉर्मेट फॉलो करते हैं। ओके, गुड क्वेश्चन। ऑलराइट, तो मैं आपको कह रही थी कि फर्स्ट करो आपसे कोई कहता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप वो डे 1 से स्टोरी नहीं बताना शुरू करते हो, ठीक है। आप क्या करते हो, आप ऐसी बात बताते हो, छोटी सी दरिया को कूजे में बंद करते हो कि 1-2 मिनट में मैं अपना सबसे बेस्ट वर्जन बता दूं कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। ऐसा ही है, इसको हम कहते हैं एलिवेटर पिच, जिसमें आप अपने बारे में पिच कर रहे होते हो 1-2 मिनट के अंदर, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट को हम कहते हैं कि ये किसी भी पेपर या थीसिस का वो एलिवेटर पिच होता है। some people they don't really want to read the whole thesis, ठीक है। आपका जो एब्स्ट्रैक्ट होता है ना, वही देख के पता लग जाता है अच्छा अंदर क्या किया होगा। बट बाजू का कुछ बच्चे माशाल्लाह होते हैं बहुत ज्यादा, वो एब्स्ट्रैक्ट भी ऐसे घुमा के बताते हैं कि पढ़ने वाला 4 दफा के बाद भी नहीं अंडरस्टैंड कर सकता कि इसने किया हुआ क्या है, ठीक है। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ बैड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन आप लोग का जो एब्स्ट्रैक्ट है वो कहने का मतलब ये है कि वो चीज है जो कि आपके पूरे थीसिस को रिप्रेजेंट करता है, और आपकी क्या होती है, वो पिच होती है, ठीक है, जो आप अपने बारे में बताते हो शुरू में, राइट, कि 2 मिनट में मैंने अपने बारे में सब बता दिया, और इतना अच्छा बताना है कि मुझे इंटरव्यू में सिलेक्ट भी हो जाओ। तो आप अगर चाहते हो कि आपका थीसिस जो है वो बहुत अच्छा जाए और उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़े, योर एब्स्ट्रैक्ट हैज टू बी रियली गुड, ओके। ओके, ये रेफरेंसेस वाला है। रेफरेंसेस वाला तो मैं बहुत ज्यादा इस पे टाइम लगा नहीं रही हूँ। ये आपने सारे स्टाइल्स पढ़े, एपीए, वैंकूवर, हार्वर्ड, अब तो आप लोग IEEE, इंजीनियरिंग का कोई बच्चा बैठा हुआ इधर हमारे पास, ये सारे बायो साइंसेस के हैं। IEEE आपको पता होगा कि ये है IEEE पब्लिशर, एक इंजीनियरिंग वाले होते हैं, जिस तरह से उनका कोई पेपर इस हमारा जिस तरह नेचर है ना, इस तरह इंजीनियरिंग वालों का IEEE है। उनका कोई पेपर अगर इस पब्लिशर के साथ आ जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, एंड इट डेफिनेटली इज अ बिग थिंग कि IEEE के साथ आपका कोई पेपर पब्लिश हो रहा है। हमारे लिए अगर नेचर होगा तो हमें साइंस वालों के लिए हमारे लिए तो नेचर बहुत बड़ी बात है ना, क्या ही हो गया। तो इसी तरह उनके लिए वो IEEE होता है। सो दीज आर डिफरेंट वेज, APA, हार्वर्ड, वैंकूवर, MLA, पता नहीं क्या क्या, ठीक है, ये सारे रेफरेंस स्टाइल्स होते हैं। और उसके बाद ये हमने लिखा हुआ है कि जी इसमें एक रेफरेंस है इस स्लाइड में, ठीक है, कि भाई कैसे कैसे किस स्टाइल में रेफर हो सकता है। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल ऑफ दीज रेफरेंसेस बिकॉज हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, मुकद्दस ने बताया। ऑलराइट, अब मुझे इसमें बताओ, अब आ जाते हैं, अब तुम लोग का इम्तिहान है ना कि तुम लोगों ने रेफरेंसेस इतना जो एंड नोट सीखा है, मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है इस रेफरेंस में। Find out the error. Shabash. Write it down in the chats. Referencing error. वैसे हम पीछे भी करके आए हैं ऐसा कुछ। इस रेफरेंस में क्या प्रॉब्लम है? Guys, what is the problem in this reference? Capitalization नहीं, yes. Smith का S is small, yes. Nankiani, Umaima, yes, yes, yes. अच्छा, और A भी छोटा लिखा हुआ है, A भी छोटा लिखा हुआ है। स्मिथ के साथ A छोटा है, ब्राउन के साथ L इज ओके, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज का E बड़ा कर दिया, बाकी सारों का फर्स्ट लेटर स्मॉल है। जर्नल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी, जर्नल का J छोटा, यस यस अरूज, ब्रिलियंट, ठीक है। DOI भी मेंशन्ड है, टाइटल एंड जर्नल नेम, यस फनाल, वेरी गुड, गुड गुड गुड। ओके, सो रेफरेंसेस आते हैं तुम लोग को यार। फाइनल रिव्यू चेकलिस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे मेरा एक छोटा सा फर्ज करो, किधर है, तो आप जब फाइनल कर रहे हो अपने थीसिस को, और आप एक दफा, मैंने आपसे कहा था कि आप पहले रिसर्चर होते हो, फिर राइटर होते हो, फिर रिव्यूअर होते हो। अब आपने राइट अप कर लिया, नाउ यू आर नो मोर अ राइटर,
यू आर अ रिव्यूअर ऑफ योर थीसिस, तो आप किस किस चीज के लिए चेक करोगे? ग्रामर, कंसिस्टेंसी, टेबल्स, ये सब लिस्ट है, ठीक है। इसके लिए आप लोग देखोगे प्लेजरिज्म हो गया, स्पेलिंग चेक हो गए, क्रॉस रेफरेंसेस, यूनिट्स। हमने देखा था डीएनए वाले टेबल में उन्होंने यूनिट्स नहीं दिए हुए थे, ये देखना है हम लोगों ने, ठीक है, कि ये सारी चीजें प्रॉपर है। अब अगला मेरा एक सवाल है, योर सुपरवाइजर गिव्स यू 5 minutes बिफोर थीसिस सबमिशन। आपके सुपरवाइजर ने आपको कहा कि आपके पास 5 मिनट है थीसिस सबमिशन से पहले, एक दफा देख लो प्रॉपर कुछ रह तो नहीं गया। What are the first 3 things you will check? बताओ आप लोग क्या चेक करोगे? 5 minutes है, सुपरवाइजर कह रहा है भाई 5 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से थीसिस चेक करो, कुछ रह तो नहीं गया। What are the 3 things you will check? Alignments, Sadia will check alignments, okay. Grammar error, consistency, okay. Alignment, headings, figures. Okay, beta, one thing. You have 5 minutes. Would you be able to check the alignment of the whole thesis in 5 minutes? References, your name. Yes, references, yes. Good. जो बोल रहे हैं ना रेफरेंसेस, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा बात बोली है, ठीक है, बिकॉज आप लोग देखोगे कि हाँ रेफरेंसेस सही से हैं, पूरे हैं, ये कोई छूटा हुआ तो नहीं है, या उसकी फॉर्मेटिंग में कोई मसला तो नहीं आया हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने उसको गलत किया हुआ, राइट। रेफरेंसेस चेक, ओवरऑल आप एक इस तरह लुक दे सकते हो थीसिस में, बट आप 5 मिनट के अंदर यू कैन नेवर अश्योर द अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज ऑफ योर थीसिस, यू जस्ट हैव 5 minutes। और क्या देखोगे? टाइटल पेज ठीक है या नहीं, इज एब्स्ट्रैक्ट ओके, अब आपकी एलिवेटर पिच है, यस, फॉर्मेटिंग बिगड़ तो नहीं गई, रेफरेंसेस, यस यस यस, रेफरेंसेस, फॉर्मेटिंग बिगड़ तो नहीं गई, ये बहुत जरूरी है। इसकी क्या सोल्यूशन है कि फॉर्मेटिंग ना बिगड़े? हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि आपकी फॉर्मेटिंग ना बिगड़े? 3 थिंग्स कहा था, तुम लोग तो रेफरेंसेस से आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। 3 थिंग्स कौन सी होंगी जो आप लोग पहले चेक करोगे? आई थिंक अगर इफ इट वाज मी आई वुड हैव सीन द टाइटल पेज, इज दैट ओके? यस। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट और इनिशियल पेजेस ठीक है, कुछ मसला तो नहीं है, डिक्लेरेशन लगी हुई है, सब टेबल ऑफ कंटेंट तो नहीं हिले, एब्स्ट्रैक्ट यस, सजदा रुस्तम यस, टाइटल सादिया यस, और उसके बाद रेफरेंसेस, बस दैट्स अबाउट इट। 5 मिनट में इतना ही होता है। यस, आप लोग फॉर्मेटिंग बिगड़ ना जाए उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हमेशा प्रिंट कराने से पहले या अपने सुपरवाइजर को फाइनल वर्जन भेजने से पहले अपने थीसिस को कन्वर्ट करें पीडीएफ के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, दिस वाज ऑल अबाउट थीसिस फॉर्मेटिंग। क्या गलतियों का ख्याल रखना है, कैसे ठीक करनी होगी, क्या मैं करूं, एब्स्ट्रैक्ट कैसा लिखूं, ये वो सब थीसिस फॉर्मेटिंग हमने कर ली, ठीक है। अब बात आती है डिफेंस प्रेपरेशन की। डिफेंस की प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, वो कल वाला मॉड्यूल होगा, एंड आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट कि तुम लोग बोर ना हो जाओ। लेकिन ये कि डिफेंस प्रेपरेशन क्या होती है? अब इतना बड़ा थीसिस है आपका, ठीक है, आपने उसमें से सिर्फ कुछ स्लाइड्स बनानी है, 15 या 30 मिनट आपको दिए जाते हैं कि चलो भाई प्रेजेंट करो क्या काम किया है, ठीक है। आप लोगों ने महीने लगा दिए वो काम करने में, बट आपको सिर्फ 15 से 30 मिनट दिए जा रहे हैं कि आप बताओ क्या किया है, राइट। तो कोई तो स्ट्रेटेजी होगी ना उस चीज की कि आपने इतने बड़े दरिया को कूजे में बंद करना है, कैसे उसको नट शेल में डाल दें उस सारी चीज को, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर अप फॉर योर डिफेंस। आपने प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज करनी है एंड आपकी प्रेजेंटेशन के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ये यहाँ लिस्ट पे लिखे हुए हैं, ठीक है। बैकग्राउंड, गैप, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स, रिजल्ट्स। कल मैं आपको डिटेल में ये चीजें बताऊंगी कि आप लोगों ने असल में कैसे करना है, मतलब किस तरह का होना चाहिए गैप वाली चीज एंड ये। लेकिन प्रेजेंटेशन बनाने का तरीका कल हम सीखेंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए क्या क्या चीज जरूरी है
सबसे पहले कि हमने प्रिपेयर कौन कौन सी चीजें करनी है, पिछले में मैंने आपको वो सारी लिस्ट दिखाई है, रेफरेंसेस, गैप, ऑब्जेक्टिव, ये प्रेजेंटेशन में डालना है। अगर आप लोग यहाँ देखो, एक चीज आप मुझे बताओ, इस लिस्ट में कौन सी ऐसी हेडिंग है जो आपके थीसिस में है लेकिन आपने यहाँ नहीं दी? डिफेंस प्रेपरेशन की लिस्ट में कौन सी ऐसी हेडिंग है जो आपके थीसिस में तो होती है लेकिन आपने यहाँ नहीं देखी? एब्स्ट्रैक्ट, वेरी गुड मनाल। टेबल, टेबल कभी कभी हो भी जाते हैं, ठीक हो गया। व्हाट एल्स अपार्ट फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट? और क्या है जो यहाँ पे नहीं है? इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, हसीब, इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड समवट एक चीज हो जाती है, थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस ही करते हो एक्चुअली उसको, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट्स, अक्सा, यस, नो, बट एट द एक्नॉलेजमेंट्स, इज इट नॉट देयर इन द लिस्ट अक्सा? डिस्कशन, बनाल, ब्रिलियंट, डिस्कशन नहीं है इसमें। So, जो बच्चे अपनी प्रेजेंटेशन में डिस्कशन लिखते हैं ना हेडिंग, I don't like that at all, because this is not how you present or defend your thesis. डिस्कशन की कभी भी स्लाइड आपके थीसिस डिफेंस की प्रेजेंटेशन में नहीं होनी चाहिए, मार्केट। कुछ बच्चे लिटरेचर रिव्यू की हेडिंग भी देते हैं, यहाँ लिटरेचर रिव्यू नजर आ रहे? no. तो आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी उसमें एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, उसमें वो नहीं होगा, लिटरेचर रिव्यू नहीं होगा, एंड डिस्कशन तो बिल्कुल ही नहीं होगी, ठीक है। सो नेवर ऐड एनी स्लाइड फॉर लिटरेचर रिव्यू और डिस्कशन इन योर प्रेजेंटेशन। तो ये जितने भी बच्चे हैं, आप लोग की स्लाइड्स में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। ऑलराइट, ये एक बड़े मजे की स्लाइड है, डूज एंड डोंट्स ऑफ अ सक्सेसफुल थीसिस डिफेंस। क्या है भाई डूज? क्या करना चाहिए? पहली चीज, टेल अ स्टोरी। ये जो न्यूज़पेपर रीडिंग होती है ना, बच्चे स्लाइड खोल लेते हैं, उसके बाद उनकी सर बस उधर ही होता है जहाँ पे स्लाइड होती है, ठीक है, और फिर नहीं मुड़ते आखिर तक, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। बाजू का तो लग रहा होता है खुद भी पहली दफा पढ़ी है आज, पता लग जाता है ना देखने से। तो आपने हमेशा जो अपना रिसर्च वर्क है, टेल इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। अब स्टोरी बताओ कि आपने आइडिया कहाँ से लिया, ठीक है। I still remember that when I started working on breast cancer, my supervisor at that time wanted me to work on colorectal cancer. And I was like, no, I want to work on breast cancer. And then he asked me, why are you so rigid about breast cancer and not willing to shift to any other? Then I told him, I don't know, I lost my maternal aunt because of breast cancer. And I have an interest, no, I want to study it, what happens in it, right? Later I realized it wouldn't have made any difference अगर colorectal cancer भी होता, but कहीं ना कहीं वो क्या था कि आपने उसको एक स्टोरी से लिंक किया, ठीक है, कि because I lost my maternal aunt to breast cancer, I was like, no, I want to study this disease now, right? तो जब आपका जब डिफेंस हो तो you can begin with that thing कि मैंने क्यों ये डिजीज शुरू की। आपकी कोई और वजह हो सकती है, आपकी कोई और वजह हो सकती है, आपकी बहुत अच्छी साइंटिफिक वजह भी हो सकती है। Mine was a bit emotional, ठीक है, बट कहने का मतलब ये है कि try to describe your thesis or present your thesis in the form of a story. कहानी सुनाओ, कहानी को इंटरेस्टिंग करके बताओ। ये नहीं कि पता लगे कि उधर खड़े खड़े आप खुद उस वक्त कहानी बना रहे हो और उसको उल्टा टेढ़ा मेढ़ा करती है, ठीक है। You must be confident enough to tell your story in a very good and interesting way. This is how you present. Maintain eye contact. एक और चीज, प्रेजेंटेशन के टाइम पे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया होगा कि अक्सर मैं एक चीज कहती होती हूँ कि एक ही बंदे को ना देखते रहा करो। This is not the right way to present.
हम क्या करते हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना, स्टूडेंट प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो वो कहेंगे जहाँ टीचर बैठा है बार बार टीचर को ही देखो. दिस इज नॉट हाउ यू लुक कॉन्फिडेंट. आप कॉन्फिडेंट कब लगोगे? आप कभी टीचर के साथ आई कांटेक्ट करते हो, कभी आप किसी स्टूडेंट के साथ आई कांटेक्ट करते हो. You need to maintain an eye contact with any one of the audiences, but keep changing your audience. सिर्फ टीचर को ही नहीं देखते रहना, ठीक है. इसी तरीके से जब आपके सामने एग्जामिनर्स बैठे होते हैं, जब आप लोग डिफेंस देते हो, you can have 3, 4, 5, 6 examiners, right? So you can look at them, each one of them. आपने ये नहीं करना कि सिर्फ जो मेरे एक्सटर्नल है मैं उन्हीं को देखता रहूंगा पूरी प्रेजेंटेशन में, ठीक है. So maintaining eye contact is very important, but do not maintain eye contact with one person only. You need to change your audiences, okay? Finish within time. Unfortunately, I'm not so good with it. You guys can see that. And know every figure, ठीक है. Know every figure means इसका बहुत डीप मीनिंग है. इसका मतलब ये है, whatever is there on your slides, you must know that. बाज़ औक़ात हम बहुत ओवर स्मार्ट हो जाते हैं और हम कहीं पता नहीं कोई नेचर की कोई तस्वीर उठा के बीच में डाल देते हैं, उसकी अलिफ बे भी नहीं आती होती, बट हमें एक इम्प्रेशन देना है कि देखो मैंने क्या क्या तस्वीरें डाली हुई है बीच में, ठीक है. वहां आपको जवाब नहीं आता उसका. आपसे कोई पूछ लेगा ना ये क्या बना हुआ है, बच्चे ऐसे कह देते हैं कि ये मैम मैंने उधर से ली थी पिक्चर, ये तो थी बट आपने क्यों उठाई, ठीक है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है. सो नेवर पुट एनीथिंग दैट यू डोंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग अबाउट. आपको किसी चीज का नहीं पता, मत डालो प्रेजेंटेशन में, ठीक है. बट जो वहां पे है ना, आप आंसरेबल हो उसके लिए, ठीक है. इसलिए आई ऑलवेज से प्रेजेंटेशन बनाना इज अ वेरी इंटेलिजेंट टास्क. You have to be very smart while making a presentation. आप ऐसे नहीं कर सकते कि अन्य वाह कुछ भी डालते हुए जाओगे, because आप हंसोगे. तो only add those things which you have answer to. That doesn't mean कि रिजल्ट ही निकाल लो अपने थीसिस के. रिजल्ट्स के लिए तो आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए ना. But the thing is कि आपके पास हर बात का जवाब होना चाहिए, लॉजिक, ठीक है. उसके बाद एक डोंट्स में क्या आ रहा है, रीड स्लाइड्स. अभी मैंने आपको कहा कि खबरनामा नहीं पढ़ना, ठीक है. ये नहीं कि आई कांटेक्ट सारा टाइम स्लाइड्स के साथ ही रहे, ऑडियंस से होना चाहिए वो, ठीक है. नंबर 2, मेमोराइज स्क्रिप्ट्स. हिफ्स करने की जरूरत नहीं होती. I've seen so many times people have written their script. Good morning, good evening, अस्सलाम वालेकुम, my topic is, even the topic is being read from the script. ऐसे नहीं होना चाहिए. You must be very fluent. ऐसे बोलो, naturally present करो, naturally, ठीक है. एक तो ये चीज. दूसरी बात है कि कभी ये सवाल नहीं करना चाहिए इंग्लिश में प्रेजेंट करूं कि उर्दू में. आई रियली डोंट लाइक दिस क्वेश्चन, ठीक है. सारी जिंदगी इंग्लिश मीडियम में पेरेंट्स पढ़ा पढ़ा के थक जाते हैं. बीएस एमएस का डिफेंस होता है, उस दिन कहते हैं मैम उर्दू में प्रेजेंट कर दूं, मिक्स में कर दूं. एक मिक्स भी है ना, एक फॉर्मूला, दोनों मिक्स कर दूं, ठीक है. तो आई ऑलवेज से कि इसके बाद कब सीखनी है इंग्लिश में बोलना. अगर आप लोग अपने बीएस के डिफेंस, अपने एमएस के डिफेंस, अपने पीएचडी के डिफेंस में नहीं अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर सकते, आई एम नॉट सेइंग कि जी ऐसे बोलो जैसे ब्रिटिशर लग रहे हो, बट कोशिश तो की जा सकती है ना. उस दिन नहीं कोशिश करनी तो फिर कब करनी है, उसके बाद नहीं मौके आते. और बीएस में भी आपकी इंग्लिश में डिफेंस होनी चाहिए. टूटी फूटी बोलो बट बोलो, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो कल के लिए. उसके बाद ओवर क्राउड स्लाइड्स, ये मैं कल बताऊंगी ओवर क्राउड का. और एग्जामिनर के साथ आर्ग्यू नहीं करना. इट शुड बी अ हेल्दी डिस्कशन. आपके डिफेंस पे ना ये डिस्कशन होती है. आप बताते हो मैंने ये किया, अगला पूछता है अच्छा ये कैसे किया. वो डिस्कस करना चाह रहे होते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग देखना चाह रहे होते हैं, ठीक है. आप उनको बताओ. बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं वो तो अपनी ईगो का मसला बना लेते हैं, इन्होंने मेरे से सवाल किया कैसे, ठीक है, और फिर बस हमने ऐसे किया ना, हमने ऐसे किया, लैब का प्रोटोकॉल था. इस तरह के जवाब नहीं ये देने होते, ठीक है. सो मैंने जिस तरह आपको कहा था कि आपका थीसिस आपको साइलेंटली आपका प्रोफेशनलिज्म बता रहा होता है. द वे यू आंसर क्वेश्चंस, द वे यू टेक क्वेश्चंस आल्सो टेल्स अ लॉट अबाउट योर प्रोफेशनलिज्म, ठीक है.
और कल जब मैं आपको प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगी तो आई टेल यू कि आपने कौन से क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, ठीक है। अगर नहीं भी आता ना जवाब तो उल्टे सीधे जवाब देने से बेहतर है कि मान लो कि नहीं आता, ठीक है। उसके बाद अब हम रैपिड फायर और छोटी छोटी से टास्क करेंगे एक आध, और फिर आई क्विट। ये तो 2 घंटे होने वाले। रैपिड फायर क्विज, जल्दी से रैपिड फायर क्विज करते हैं। पहला सवाल, यू कैन राइट इन योर चैट, कैन एन एब्स्ट्रैक्ट कंटेन रेफरेंसेस? नो, गुड गुड, false, very good guys. How many keywords? Keywords क्या होते हैं? Keywords होते हैं कि फर्ज करो किसी ने आपका थीसिस पढ़ना है, आप वो 5 लफ्ज ऐड कर देते हो कि अगर कोई उन लफ्जों को यूज करके सर्च करेगा ना तो आपका थीसिस आए बीच में। फर्ज करो मैंने ब्रेस्ट कैंसर पे काम किया तो मैं ब्रेस्ट कैंसर को एक कीवर्ड रखती हूँ, ठीक है। अब कोई भी लिखेगा ना ब्रेस्ट कैंसर गूगल पे तो मेरा भी थीसिस पॉप अप होगा, क्यों? क्योंकि मेरे थीसिस का कीवर्ड, यस, 3 to 5 keywords for particular topic, मैक्सिमम कीवर्ड्स 3 से 5 आप लोग रख सकते हैं। यस, गुड 5 to 7, okay, 5 is a good number. Should every figure be cited? इसका कौन जवाब देगा भाई? यस मुकद्दस, why no? हर फिगर को साइट करना जरूरी है unless and until वो फिगर आपने खुद नहीं बनाई, खुद बनाई है, सॉरी, ठीक है। अगर आपकी खुद की बनाई हुई फिगर है फिर किसको साइट करोगे? अपने आप को तो नहीं कर सकते ना, कि अपने आप को भी करते हैं कि मैं बहुत महान हूँ, देखिए मैंने खुद पिक्चर बनाई है, मैंने अपनी साइटेशन रख दिया, राइट। सो आप क्या करते हो कि अगर आपने कहीं और से पिक्चर सोर्स किया है तो आप उसको लाजमी साइट करोगे, लेकिन अगर आपने खुद बनाया है तो आप उसको साइट करने की जरूरत नहीं है। यस, बायोटेक स्क्वाड, बायो रेंडर से, अगर बायो रेंडर पे अगर किसी ने काम किया हुआ है तो आप लोग को आइडिया होगा कि बायो रेंडर एक कॉपीराइट का सर्टिफिकेट भी देता है। बायो स्क्वाड, यू मस्ट नो, है ना, आप लोग को इसका पता होगा। जब आप बायो रेंडर पे कोई तस्वीर बनाते हो तो वो आपको कहता है कि आपको पब्लिकेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए साथ, आप उसको कहते हो यस, और आप उसको साइट करते हो अपने थीसिस में, क्रिएटेड विद बायो रेंडर। और आजकल जर्नल्स वाले आपसे कहते हैं सर्टिफिकेट दिखाओ बायो रेंडर का, कॉपीराइट का, ठीक है, और फिर आप वो सर्टिफिकेट दिखाते हो, ठीक हो गया। सो दिस इज बायो रेंडर इटसेल्फ इज अनदर टॉप, जिंदगी रही तो उस पर भी बात करेंगे कभी मौका मिला। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इन पे मैं इतना टाइम नहीं लगाने लगी। ये कुछ मिथ्स और फैक्ट्स हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं यार जितना लंबा थीसिस होगा, अच्छा एक और बात, दुनिया में बहुत मसरूफियत हो गई है, टाइम इज रनिंग फास्ट। एक दौर होता था इतने मोटे पीएचडी के थीसिस होते थे, एमएस का थीसिस इतना मोटा, बीएस का इतना मोटा। पीपल यूज्ड टू कैलकुलेट द क्वालिटी ऑफ योर थीसिस by looking at the thesis. ओ यार इसके तो 600 सफ़े हैं, बहुत आला थीसिस है, इसके तो 700 है, क्या पीएचडी कर दी इसने, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट एनीमोर। अब हर एक को होता है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हमें फर्क नहीं पड़ता कि आपके 700 पेजेस हैं, यू कैन राइट 100 पेजेस बट उसमें क्वालिटी वर्क दिखाओ, राइट। तो वो जो कॉन्सेप्ट है लॉन्गर द बेटर, नो, दिस इज अ मिथ। फैक्ट ये है लॉन्ग है, शॉर्ट है, मीडियम है, जैसा भी है, क्वालिटी का होना चाहिए। आप बेशक छोटा सा थीसिस बना लो, ठीक है, बट उसमें बात आपने पते की हो, अच्छी बात की हो, ठीक है, फाइंडिंग्स अच्छी हो आप लोगों की, राइट। और फिर एक और मिथ, जैसी भी इंग्लिश लिख लो थी साइंस में चल जाएगी, नो, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, नहीं चलेगी, ठीक है। उसके बाद एक और मिथ ये भी है, कई लोग कहते हैं ना यार ये वाला रेफरेंस स्टाइल बहुत मुश्किल है, इसको नहीं करते यार, हम यही कर लेते हैं जो आता होता है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। जैसे साइंसेस वाले एपीए को छोड़ते ही नहीं जान उसकी, ठीक है, लेकिन जब आप लोग पेपर पब्लिकेशंस करोगे ना आप लोग को पता चल जाएगा कि
सारे रेफरेंस स्टाइल आने चाहिए। अच्छा ये एक और है, इसमें क्या मिस्टेक है बेटा? जल्दी जल्दी मिस्टेक निकालो फिर हम खत्म करें, 10 बजे तो खत्म करें। इसमें क्या मिस्टेक है? स्पॉट द मिस्टेक, जल्दी जल्दी से लिखो। 23 बच्चे हैं, एक का भी जवाब नहीं आ रहा। वाह, वैसे सारा कुछ साथ लिखा हुआ भी है बट स्टिल। ठीक है कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन का आय बड़ा होना चाहिए। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे जस्टिफाइड नहीं हुआ हुआ टेक्स्ट। ठीक है, स्मिथ का एस छोटा है, उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट का पी छोटा है। ठीक है, सेकंड हेडिंग प्रॉब्लम, यस। तो ये सारी चीजें इसमें प्रॉब्लमेटिक है। इफ यू गाइस वांट तो आई कैन शेयर दीज विद हबीबा एंड यू कैन टेक इट फ्रॉम हर। ठीक है, बातों का आपको कुछ चीजें हेल्प करती हैं। ओके, विच ऑफ दीज एलिमेंट्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन अ गुड एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट में क्या चीजें होनी चाहिए? इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है? कौन सी ऑप्शन ठीक है? Oh, brilliant, brilliant, brilliant. उसके बाद ऑलराइट, अब यहाँ पे ना एक सवाल है। वैसे ये पार्ट थोड़ा सा उस तरह का भी है जो कल मैं आप लोग को बताऊंगी। ठीक है, मॉक एग्जामिनर क्वेश्चन। ठीक है, आपको मॉक का कॉन्सेप्ट है? आप बच्चों को क्या होता है कि जब जैसे हम अपने स्टूडेंट्स की भी जब उनका फाइनल डिफेंस होने वाला होता है, 1-2 दिन पहले हम उनका मॉक सेशन लेते हैं। ठीक है, मॉक में क्या होता है कि हम एक नकली सा उनका डिफेंस करवाते हैं। ठीक है, असल में एक्सटर्नल नहीं होता, लेकिन हम उनकी प्रैक्टिस कराने के लिए हम खुद उनका मॉक करा रहे होते हैं, राइट? सो मॉक एग्जामिनर क्वेश्चन, आप खुद के एग्जामिनर खुद बनेंगे। फर्स्ट एग्जामिनर में से ये पूछता है तो मैं क्या जवाब दूं? ठीक है, ये पूछना क्या चाह रहा है मेरे से, राइट? अगर एग्जामिनर कह रहा है कि जी आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया, मैंने आपको अपने टॉपिक की कहानी बताई। ठीक है, बट कुछ ऐसे भी एग्जामिनर होते हैं, ये क्या बात हुई, ये तो आपने जज्बाती स्टोरी सुना दी है, साइंटिफिक रीजन तो नहीं है ना। ठीक है, सो यू ऑल्सो नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स। क्या अगर मुझे कोई ऐसे कहेगा तो मैंने कैसे उसको रिस्पॉन्ड करना है। एक और बात, जब भी आप सवालों के जवाब देते हो, नेवर रिएक्ट, ओनली रिस्पॉन्ड। दिस इज द की। आपने रिस्पॉन्स देना है, आपने रिएक्शन नहीं देना। ठीक है, ऑलराइट, अगला क्या है जनाब? ये थीसिस पेज। पहले वाला पुअर की एग्जांपल है, अगले वाला गुड की एग्जांपल है। आपके भी गुड वाले होने चाहिए लेटर ऑन। ठीक है, अच्छा, हाउ ऑफन डू यू चेक द फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस व्हाइल राइटिंग योर थीसिस? इस्लामिक वाले बच्चों को तो मैं खुद बता सकती हूँ, 1 टाइम बिफोर सबमिटिंग ओनली। ऑलवेज। ओह ग्रेट, ब्रिलियंट। अच्छा, इसका मतलब है ये जो मेरे पास आ रहे हैं ये ऐसे। ओके ओके, वेल ऑफ कोर्स यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं डेफिनेटली वो अपना पढ़ाई और इंटर्नशिप्स और उन सारी चीजों से, जॉब से टाइम निकाल के अगर ये सुन रहे हैं, they are definitely the serious people. I also have good students, but of course there are some students who are always like behaving otherwise. तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपनी फॉर्मेटिंग और इन सारी चीजों को पुट इट एट द एंड। ठीक है, कि हम आखिरी दिन पे वो करेंगे, ऐसे वाले बच्चे भी होते हैं। बट आई एम हैप्पी टू नो कि आप सारे बहुत अच्छे बच्चे हो। ओके, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, एरर स्पॉट करने वाला मॉक क्वेश्चन है। अब आपसे वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, ये वो मॉक क्वेश्चंस हैं कि आप अपने से पूछ सकते हो। ये टॉप 10 मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं। इसका बॉटम लाइन ये है कि प्रूफ रीड, check and follow the guidelines carefully. Your hard work deserved a polished thesis. Yes, yes, yes. जितना काम आप लोग करते हो ना, उसके बाद उतनी मेहनत का सिला जो अगर आपने खुद को देना होता है ना, वो क्या होता है? एक प्यारा सा थीसिस। अगर गंदा थीसिस है तो आप खुद को अच्छा गिफ्ट नहीं दे रहे हो, इतने हार्ड वर्क हो, राइट? सो योर गुड, well written, polished thesis, clear thesis, a professionally looking thesis is a gift to yourself after all that heavy amount of work you have done in months or years. ठीक है, so I hope हर इंसान अपने आप को अच्छा तोहफा देना चाहता है तो खुद को भी अच्छा तोहफा दें थीसिस की शक्ल में। टेक होम मैसेज हमारा है कि a well written thesis documents your research and a well delivered defense demonstrates your understanding. थीसिस में आप लिख देते हो मैंने ये किया, वो लिखा हुआ आपको कितना समझ आया है वो हम कल देखेंगे।
कि आपने कैसे अगले को समझाना है कि मुझे समझ आया हुआ है, ठीक है? That's all about today. Thank you guys. If you have any questions, you can still ask. We have 7 minutes to 10. Right? Oh, you're welcome, beta. Thank you, ma'am, for such informative session. Now we will move on to You're your Q&A session. Everyone, this is your chance to clear any doubts you may have about this formatting, abstract writing, reference, or the final review process. Remember, there is no such things as a silly question. अगर किसी और के mind में भी कोई question आ रहा हो तो अगर आप पूछेंगे तो उसकी बहुत help हो जाएगी. welcome. So don't hesitate. So if you have a question, you can either raise your hand or ask ma'am directly or type your question in the chat box. Yes, please go ahead. Oh, thank you so much, Anuj. Thank you so much. I'm always happy to see my students in the Bio Squad sessions. जी बेटा, आप लोग सवाल कर सकते हो किसी भी किस्म का. अगर आज नींद आ रही है तो कल कर सकते हो. कल आई विल ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल. आई विल ट्राई कि कल हम सिर्फ 1 घंटे तय करें, ठीक है? आई एम सो फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग, सो it's a verbal diarrhea, it never stops. All right, somebody has asked me a question. How can we choose a good research topic? Good research topic. अगर आप जनरली पूछोगे कि गुड रिसर्च टॉपिक क्या होगा, तो हमेशा आप सुनोगे, किसी के पास भी जाओगे वो कहेगा आइडिया नोवेल लाओ. नोवेल आइडिया, इस पे तो इतना काम हो चुका है, इस पे हमने क्या करना है, ठीक है? ट्रेंडिंग टॉपिक, यस. तो गुड आइडिया इज एनीथिंग दैट हैज नॉट बीन टच्ड so far or that has not been published crazily so far. कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है यार कि जब मैं उसके बारे में सर्च करता हूँ तो उसमें तो पेपर ही नहीं निकल रहा है, ठीक है? आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ कि अच्छा टॉपिक क्या है, तो आप कहते हो कि यार मैं फला चीज. वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, आई मस्ट मेंशन हर, शी इज नॉट हियर इन दिस सेशन टुडे, बट उसने मुझे कहा कि मैम हमारे इलाके में एक जड़ी बूटी यूज होती है और उस जड़ी बूटी में कहते हैं कि एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज है, ठीक है? तो शी सेड कि जब मैंने उस जड़ी बूटी का नाम लिखा तो उसके में कोई पेपर था ही नहीं, कहीं पे भी कोई पेपर नहीं था उस जड़ी बूटी के बारे में. बट जब उसने मेडिसिनल कॉम्पोजिशन देखी तो अंदर देखा कि ऐसा कंपाउंड था, कोई एल्कलॉइड की फ्लेवोनॉइड, कि जिसकी एंटी ट्यूमर एक्टिविटी थी. शी सेड कि लेकिन जब मैंने सर्च किया तो उस पर तो कोई पेपर निकला ही नहीं. अब वो जड़ी बूटी उस इलाके में अजलों से उग रही है, अजलों से यूज होती आ रही है. वो नहीं था टोटके वाली मेडिसिन कि ये खा लो इससे तुम्हारा ठीक हो जाएगा कैंसर, इस तरह उनके इलाके में इस तरह होता था. तो शी सेड कि आई वांट टू वर्क ऑन दैट, ठीक है? आई वांट टू राइट अ गुड पेपर ऑन दैट, एंड शी एक्चुअली वर्कड ऑन दैट. शी इज वन ऑफ माय एमएस स्टूडेंट्स, ठीक है? तो उस बच्ची ने बहुत अच्छा जो है वो आगे काम भी किया. उसने वहां से उसमें से एक पर्टिकुलर जीन निकाली, उसी डिजीज में से फिब्रॉइड्स पे काम था उसका एंड ऑल ऑफ दैट. तो गुड आइडिया कैसे आता है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल. कभी-कभार आपकी सराउंडिंग में कुछ ऐसा हो रहा होता है कि आप कहते हो कि यार ये तो इन डेप्थ स्टडी की जा सकती है, ठीक है? आजकल ट्रेंडिंग का वर्ड इधर अरूज ने यूज किया है. तो anything that is trending is a hot topic these days, is a very good idea to work on, ठीक है? बिकॉज उसके लिए आपको फंडिंग भी मिलेगी. कोविड के टाइम पे आपको पता है, कोविड के टाइम पे अगर हम कहते हैं कि हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि जर्नल कहते हैं यार कि महीनों लग जाते हैं आपका पेपर पब्लिश नहीं होता, जर्नल बहुत टाइम लेता है, बहुत टाइम लेता है. जब कोविड आया, कोविड इतना रैपिडली फैल रहा था, जर्नल्स ने हफ्ते में पेपर पब्लिश करना शुरू कर दिए. यहाँ आपने सबमिट करवाया कोविड का पेपर, हफ्ते बाद आपका पेपर ऑनलाइन आ जाता है. एंड वी वर लाइक कैसे ये पॉसिबल है, ठीक है? कि क्या कहते हैं कि आपने मतलब आज जमा करवाया और हफ्ते बाद आपका पेपर आ जाता है. बट क्यों? कोविड इतना ट्रेंडिंग हॉट टॉपिक था कि सारी दुनिया को उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी. हमें बताओ कि कितने पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, हमें बताओ कि किस जगह पे कितने केसेस आ रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस कितने, नेगेटिव कितने, पॉजिटिव कितनी डेथ्स हो रही है, राइट? सो उसके बाद जब तीन एक साल वो बड़ा हैपनिंग रहा है, हाँ, बट लेकिन जब वो खत्म हुआ, अब आप कोविड का पेपर जमा कराओ, कोई पब्लिश नहीं करेगा आपका पेपर,
कहेंगे क्यों भाई, कोविड तो चला गया, अब क्यों हम पब्लिश करें, राइट? सो दिस इज हाउ यू चूज योर टॉपिक. इट कैन बी समवेयर इन योर सराउंडिंग. एट टाइम्स आपको क्या कहते हैं कि आप इतना लिटरेचर पढ़ते हो, आपको वैसे ही कोई जीन पसंद आ जाती है, आप उसकी इतनी इन डेप्थ स्टडी करते हो, आपको फिर पता चलता है यार इसका तो ये वाला एस्पेक्ट तो किसी ने स्टडी नहीं किया, मैं ये करना चाहती हूँ, राइट? सो योर इंस्पिरेशन ऑफ अ रिसर्च आइडिया कैन कम फ्रॉम एनीवेयर. एक जड़ी बूटी से भी आ सकती है, किसी क्लोज रिलेटिव की डेथ से भी इंस्पिरेशन आ सकती है, बाजों का ट्रेंड से भी इंस्पिरेशन आ सकती है, और एनीथिंग. सो एनी आइडिया इज अ गुड आइडिया इफ यू नो हाउ टू एक्सप्लोर इट. ओके? And biotech. Oh, thank you so much. Thank you so much, biotech. Oh, that's really sweet. Romesa Noor, I wish one day I will be able to teach you somewhere. You never know. दुनिया गोल है. हाँ? तो अब 10 बज गए. इसके बाद तो हबीबन मुझे जबरदस्ती बाहर निकाल देना है. ठीक है, तो thank you so much guys for your attention. तो इंशाल्लाह. तो Thank you क्या so much, कहते हैं ma'am, कि- for Yeah, answering thank you so much. everyone's questions. थैंक यू सो मच. और अब इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे, ठीक है? Yes, ma'am, sure. I hope today's session has given everyone a better understanding of, has given everyone a better understanding thesis formatting, writing a strong abstract, and writing a thesis before submission. With that, we have reached the end of the today's session. On behalf of the Bartok Squad, I would like to thank Dr. Javeria Kadir for sharing her knowledge, expertise with us today. Also, thank to Ms. Habiba Noor for arranging insightful and fruitful session for us. And thank you all the participants for joining us and actively participant throughout the session. We look forward to seeing you again tomorrow, inshallah. Allah Hafiz. Allah Hafiz. You may leave now. Allah Hafiz, everyone. Okay, Allah Hafiz everyone, and thank you so much. Thank you so much, ma'am.